જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રદીપ દાદા હાજી ત્રિમંત્ર. હા. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો વત્સાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો સર્વસાહુણમ, એસો પંચનમુક્કારો, એસો પંચનમુક્કારો, સવપાવપણાશણો, સર્વપાપનાશનો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ, મંગલાણં ચ સર્વેસિમ, પઢમં હવૈ મંગલમ, પડમં હવૈ મંગલમ, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપ દાદા, જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સદમાત્માઓ. જય પ્રદીપ દાદા આ સચ્ચિદાનંદ. લોકોનું સર્વેને હજી જય સચ્ચિદાનંદ. હોમવર્ક ચાલે છે કલમ પહેલા ઉપર, તો આપણે પહેલા હોમવર્ક ચેક કરી લે, પછી તમારું આપણે એમની સાથે વાત કરજો. ઓકે. વિધિબેન, વિધિ દીદી. હા, હોમવર્ક એ હતું કે ભાવ કરવાનો કે દાદા ભગવાન પાસે કે શું જમવું છે, અને પછી મમ્મી જે આપે એ ખાઈ લેવાનું, અને નામ બોલીને શક્તિ માંગો કે મન વચન અને કાયાથી કોઈ પણ જીવ એટલે કે મમ્મી પપ્પા પર્ટિક્યુલર મમ્મી પપ્પા ભાઈ બહેન કે દાદા દાદી ને દુઃખ ના થાય. બોલો. હા, આજે મેં ભાવ કરેલો કે કંઈક સારું જમવાનું મળે, બટ પછી મમ્મીએ કારેલાનું શાક બનાવ્યું હતું તો પછી ખાઈ લીધું પ્રેમથી, તો એમાં વાંધો ના આવ્યો આજે બહુ, પણ ખાઈ લીધું એમ. થોડું મોઢું બગડેલું, પણ પછી દીપક દાદાએ કહ્યું હતું ને કે જે મમ્મી આપે એ પ્રેમથી જમી લેવાનું, તો જમી લીધું હતું. અને પછી નામ બોલીને આજે મમ્મીનો અહમ ન દુભાય એવી મેં પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી મમ્મીનો અહમ ન દુભાય એવી પરમ શક્તિ આપો એવી મેં દાદા ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરી હતી. તો આજે આખા દિવસમાં મેં મમ્મીનો ક્યાંય અહમ નથી દુભાયો. વેરી ગુડ. પછી તારે તો બીજા તારા કાકાના છોકરાને બધું કરવાની છે હજી તો, હો? હા, એટલે બહુ હજી સંપર્ક મતલબ બહુ ફોનમાં હમણાંથી વાત નથી થઈ, એટલે હમણાં શાંત છે બધું. ના, પણ તોય એ તો તમારે એકવાર એને પ્રાર્થના કરી જ નાખવાની. હા, વિધિ. હા. ખુશી. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. આજે મારે તો કઈ મન નતું થયું કઈક સારું ખાવાનું, પણ આજે મમ્મીએ કારેલાનું શાક બનાવ્યું હતું તો ટિફિન્સ લઈને ખાધું. અને આજે મેં એવી પ્રાર્થના કરી કે મન વચન કાયાથી દીદીનો. હેલો ખુશી. ઓકે, આપણે લોસ્ટ કરીએ લોકોને. ઓકે, તારક. જય સચ્ચિદાનંદ. આજે મારે અહમ નથી દુભાયો અને 5 વાર પ્રતિમા વચન કાયાથી બોલ્યો તો, અને આજે એ શાક આપ્યું એ ખાઈ લીધું હતું અને પાણી પીવા. અચ્છા, તારે મમ્મી પ્રત્યે પ્રાર્થના કરી હતી કે નહીં? હા, નથી કરી. હા, તારે દરરોજના 10 વાર તો કરવાની ચોક્કસ રીતના. હા, આજે 10 વાર કરી, સુતા પહેલા 10 વાર કરી દેજે. હેતવી. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. આજે મેં જમવામાં આજે સાંજે
મુઠિયા હતા તો મને નતું ભાવતું, પણ મેં જમી લીધું. અને બીજું તો આજે મારે 15 મિનિટ વહેલું પેપર પતી ગયું હતું, તો મેં બધાની અંદર દાદા ભગવાન જોયા. ઓકે, વેરી ગુડ. પ્રહાર. જય સચ્ચિદાનંદ. આજે મેં કોઈ નથી દુભાવ્યું. મમ્મીનો દુઃખ નથી પહોંચાડ્યું. અને આજે ખાવાનામાં મારો ભાવ કરેલો કે મને કશું ભાવતું બને તો ભાવતું જ બન્યું, એટલે ખાઈ ગયા હતા. ઓકે, પ્રાર્થના કોના વિશે કરી હતી? મમ્મી વિશે પ્રાર્થના કરી હતી? કરી હતી. કેટલી વાર કરી હતી? 5. ઓકે, તારે હંમેશા કરવાની. હિતાક્ષી? કેટલા ટાઈમ કરવાની? શું કહ્યું? કેટલી વાર કરવાની? 5 વખત. 5 વખત. હા, તો 5 ટાઈમ જ કરો. ઓકે, વેરી ગુડ. હિતાક્ષી? જય સચ્ચિદાનંદ. મેં આજે એવો ભાવ કર્યો હતો કે પાવભાજી, પનીર ટીકા, કાંક એવું ઇડલી સંભાર કાંક એવું ખાવું હતું. મમ્મી ઇડલી સંભાર બનાવ્યા હતા, એ જમી લીધું. અને મેં પ્રાર્થના કરી હતી કે મમ્મી પપ્પાને મારાથી દુઃખ ના થાય. 5 ટાઈમ. મમ્મી પપ્પા સાથે કર્યું કે જુદી જુદી કરેલી? સાથે ના પાડી છે દીપક દાદાએ. સાથે કરો તો કોને ફોન જાય? એની વચ્ચેથી નીકળી જાય ફોન. ઉભા એક ખ્યાલ આવ્યો? એ પ્રાર્થના તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કરવાની છે, દરેક વ્યક્તિની. ઓકે, શું પ્રહર બોલો? પ્રહર? ટીવી જોતા ખાવાનું ખાધું છે, કારણ કે મામા ને છે ને, તો એ મેચ જોતા હતા એટલે એમની સાથે બેસ્યો હતો. એ બધા મેચ જોતા હતા એટલે ક્રિકેટ મેચ હતી ને. નહીં સંભળાણું નહીં બરાબર. સંભળાણું વિધિ? ના, એટલું નહીં બરાબર સંભળાયું. આજે મામાના ઘરે હતો ને, તો એ મામા ટીવી જોતા હતા, મેચ જોતા હતા. તો મેચ જોતા જોતા એને ટીવી જોયું, જમ્યો. જોતા જોતા. તો 5 મિનિટ થોડું ના જોયું તો ના ચાલે? શું? તે ખાવાને ટીવી છે ને, ટીવી રસોડામાં છે ને તમારું? ના બહાર છે, ડ્રોઈંગ રૂમમાં. તો એ જમવાનું તો રસોડામાં ના હોય? બધા ત્યાં બેઠા એટલે હું બી ત્યાં બેઠો. એકલો ત્યાં શું કરું? કોઈ હતું નહીં ત્યાં. રજની દાદા બધા સાથે બેસે. તો રણજી દાદા, ઘરના બધા લોકો ટીવી જોતા જોતા ખાય છે. ઓહો, તો શું કરશું હવે? પ્રદીપ દાદા પછી એમની સાથે વાત કરજો. હા, બોલો. રજની દાદા મેં ટીવી જોતા જોતા સવારે નાસ્તો કરી લીધો હતો. ઓહો, પ્રદીપ દાદા શું કરશું આપણે? વાત તો કરો. મામાને મેચ બહુ છે, ક્રિકેટમાં બહુ શોખ છે, કે જોતા હતા. ફાઇનલ છે ને ઇન્ડિયા ઇંગ્લેન્ડની. ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાને કહ્યું કે ગમતું અને ના ગમતું એ મનનો પ્રશ્ન છે. એટલે આપણને જે વસ્તુ ભેગી થાય છે એ આપણા હિત માટેની છે અને આપણે જ એને બોલાયેલી છે. કારેલાનું શાક ભેગું થાય, મુઠિયા ભેગા થાય કે પછી જે કંઈ ભેગું થાય તે. એ દાદા ભગવાને કહ્યું કે જેને આ જગતમાંથી કાયમનું સુખ મેળવવું હોય તો જે ભેગું થાય એને આપણે સમજીને આપણે જ બોલાયેલું છે માનીને જે કંઈ ભાવે એનો વિનય કરીને એમાંથી મુક્ત થવું જોઈએ. જેને દાદા ભગવાને કહ્યું કે જ્ઞાન ભાષામાં એને સમભાવે નિકાલ કહ્યો. અને જેને જ્ઞાન દ્રષ્ટિ ના હોય એ લોકોએ એવું ધ્યાનમાં એ સમજણ રાખવી જોઈએ કે મેં જ પૂર્વે એને બોલાયું છે, એ મને ભેગું થયું છે,
એટલે હવે એની ઉપર અભાવ કરવાની જરૂર નથી. અને ગમતું હોય તો આ બહુ સરસ છે એમ કરીને એના પર ભાવ કરવા જેવો નથી. કારણ કે મન જીવતું રહ્યું એટલે સંસારમાં ભટકવાનું રહ્યું. બરાબર? એટલે હા દાદા ભગવાને કહ્યું કે ગમતું અને ના ગમતું એ મનનો પ્રશ્ન છે. એટલે એમાંથી આપણે કેવી રીતે નીકળી જવું જોઈએ એ આપણે શીખવાની જરૂર છે. બરાબર? હા બીજી વસ્તુ કે વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ જે જમવાનું ભેગું થાય છે એ અંદર બધા પડેલા પરમાણુઓ છે. અને એ જ બધી અંદર એમાંથી આપણને એટલે જ અંદર શરીરમાં એ ખેંચાઈને જાય છે. ભાવ કરેલો મુઠિયાનો કે પાવભાજીનો, અને આજે આપણું મન શું કે છે, આજે આપણી બુદ્ધિ શું કે છે કે મને આવું ખાવું છે. એટલે આપણે હંમેશા દાદા ભગવાનના માર્ગમાં અને દાદાના જ્ઞાનથી આગળ વધવું હોય તો ના ગમતાને ગમતું કરવું જોઈએ કે બહુ સરસ છે આ તો. ओ ખ્યાલ प्रदीप આવ્યો? दादा थोड़े કારેલા माफ कर, એ શરીર માટે प्रदीप दादा ઉપયોગી છે. प्रदीप माफ हम्म, करना, ये हिंदी आज हिंदी का है, सॉरी। ओके ओके, चलो हिंदी में बोलने का है आज। और दूसरी बात ये है कि सब लोग टीवी के सामने बैठ के अगर मम्मी पापा भी खाते हैं, वो हमारे सबके नजदीक का रिलेशन वाले हैं, वो हमारे गुरु है, फिर भी हमें क्या करना है, हमें किस रास्ते पे चलना है, वो खुद को डिसाइड करना चाहिए. और डिसाइड करने के बाद खुद को सिंसियर रहना चाहिए. अगर हम सिंसियर नहीं रह सकते और गिर गए तो फिर उठ के चलना चाहिए. और दादा भगवान ने बताया कि गॉड इज इन एवरी क्रिएचर, वेदर विजिबल और इनविजिबल. हमारी अंदर जीव मात्र के अंदर भगवान बैठे हुए हैं. हम जैसी प्रार्थना करके शक्ति मांगेंगे वैसी शक्ति हमें मिलेगी. तो आपको नहीं, जो दादा भगवान के सत्संग में आते हैं उन सभी को ये बहुत गंभीरता से समझने जैसी चीज है कि दादा भगवान ने क्या क्या बताया है, किस तरह से हर संजोग में से हमें गुजरना है. संजोग तो आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन हमारी समझ और दादा की समझ एक होनी चाहिए. एक बार हमने डिसाइड कर दिया तो हम जीवित है. हमें मन बतावे कि टीवी के सामने सब लोग बैठ के खाते हैं, तो क्या हमें हमारा ध्येय छोड़ देना चाहिए? अगर आप स्कूल में पढ़ते हो, एग्जाम का टाइम है, तो सब लोग सो जावे तो क्या हमें सो जाना चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो इसी तरह हमारा हित और हमारा अहित, फायदा नुकसान किस तरह से है, तो वो हमें समझने का है. फिर मामा खाते थे, पापा खाते थे, चाचा खाते थे, सब बात सही है, लेकिन वो लोगों ने बताया था कि आप मेरे साथ बैठ के खाओ. नहीं, अगर अकेले किचन में बैठ के खाना पड़े तो क्या बात है उसमें बड़ी बात. हमारा ध्येय, हमने जो डिसाइड किया है उसको सिंसियर रहना है. दादा भगवान वितराग भगवंतों को सिंसियर थे, उनको सब चीज मिलती थी, दुनियादारी के सभी सुख मिलते थे उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने वो नहीं किया. उन्होंने एक ही सिंसियर रहे कि जब मैं रास्ते चलते चलते कोई भी आदमी को मोक्ष दे सकूंगा तभी मोक्ष जाऊंगा. तो देखो भाई कलयुग में कैसा ज्ञान प्रकट हो गया. इसी तरह अभी मैं आपको बताता हूँ, उनके पहले दादा भगवान के प्रागट्य होने से पहले एक श्रीमद राजचंद्र जी करके ज्ञानी पुरुष हो गए. तो वो शतावधानी थे. वो शतावधानी महीना वो 100 आदमी 100 सवाल अलग अलग पूछो, वो पूछते थे लोग. उनके पास पेन कागज कुछ नहीं था, वो सवाल पूछते थे और उनका बाद में जवाब देना था.
तो 100 सवाल पूछने के बाद 1 बाय किसने कौन सा सवाल 50 नंबर का पूछा, वो उनको बोलते थे आपका सवाल ये है, उनका जवाब ये है। जब वो पास हो गए उस समय गांधी जी उनके पास पता चला, तो गांधी जी ने क्या बताया पता है? अरे आप इतने समर्थ और शक्तिशाली हो, जो शब्द मेरे हिसाब से मैं लगाता हूँ, हाँ, किताब में मैंने पढ़ा नहीं है, तो आप फॉरेन में जाओ और आपकी बहुत बड़ी नामना होगी, बहुत पैसा मिलेगा, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो उन्होंने क्या बताया मालूम है? उन्होंने बताया कि मेरा ध्येय एक आत्मा प्राप्त करने के लिए है, पैसा कमाने के लिए नहीं है। तो उन्होंने इतने सारे खानदान में जन्म हुआ था, सब कुछ था, फिर भी जब समय मिलता था तब वो जंगल में ईडर के पहाड़ियों पे, वडवा जैसे खंभात गुजरात में, आगास गुजरात में आनंद के पास, वहां जाके झाड़ियों में बैठ के, उस समय इतनी बस्ती नहीं थी, तो वहां बैठ के खुद आत्मा का साधना और रिसर्च कर रहे थे और उनको आत्मा की प्राप्ति हो गई। तो इसी तरह ज्ञानी पुरुष के हमें क्यों जरूरत है, उनकी क्यों कीमत है? तो हमें ज्ञानी पुरुष के पास सीखना है कि हर संजोग में हमारा ध्येय को कैसे सिंसियर रहना है। अगर हम कलयुग में हम कच्चे पड़ जाते हैं तो डरने का नहीं है। दादा भगवान ने इससे आगे बताया कि गिर जाओ तो फिर उठो और शक्ति मांग के चलो। गिर जाओ फिर 1,00,000 बार गिरो, लेकिन 1,00,000 बार पक्का निश्चय करो कि दादा मुझे शक्ति दो, मुझे अभी टीवी के सामने बैठ के खाना नहीं है, ये मेरी गलती हो गई है। लेकिन ये सभी चीज जितनी बाय हार्ट कोई भी प्रार्थना करेंगे, ये शब्द की कीमत नहीं है, इसमें हार्ट की कीमत है। तो कोई भी करेगा वो सफल हो जाएगा, क्योंकि दादा भगवान का ऐश्वर्य, दादा भगवान की कृपा और प्रत्यक्ष अरिहंत भगवान श्री सिमंदर स्वामी आज प्रत्यक्ष है। हमें जितना फायदा उठाना है तो उठा सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारी शक्ति नहीं है, हम जानते हैं कि हमारे कर्म और संजोग हमें भटका देते हैं, कहीं इधर उधर चले जाते हैं, उसमें से सुख ले लेते हैं। कभी कभी तो 2 घंटा 3 घंटा चले जाते हैं, लेकिन फिर भी डरो मत। जब भी आपको पता चले फिर से हमें दादा को, सिमंदर स्वामी को प्रार्थना करना है और हमें ध्येय में सिंसियर रहना है, वो हमें अंदर से नक्की करते जाए। आप समझे? आपको थोड़ा बहुत काम आएगा। बहुत मैं काम आपको आएगा। मैं दूसरी बात बताता हूँ कि हिमालय जैसे पहाड़ पर हम पढ़ते थे तब आता था तानसेन एंड हिलेरी। वो उस समय पहले ये लोग शिखर पे जाके वो लोग बर्फ की पहाड़ियों में चढ़ के पहली बार भारत का झंडा लहराया था। तो वो शक्ति रिलेटिव में भी कोई नहीं जाता था, कई लोग वापिस आ गए, लेकिन वो उधर जाके उन्होंने, वो नाम तो अभी दीपक आनंद जी को पूछना पड़ेगा, लेकिन पढ़ाई में आता था उस समय। तो ऐसे हमारा निश्चय मजबूत होना चाहिए। जितना आप नक्की करो उस हिसाब से चलो, लेकिन मन का ताका तन चले, ताका सर्वस्व जाए। मुझे भी मन कई संजोगों में नेगेटिव दिखाता होगा और दिखाता भी है, लेकिन मैं तुरंत दादा भगवान को और सिमंदर स्वामी को जब भी पता चलता है मैं प्रार्थना करता हूँ, दादा भगवान, हे सिमंदर स्वामी प्रभु, इस नेगेटिव चीज से मुझे दूर करो, मुझे शक्ति दो। से आपको शक्ति मांग मांग के चलना पड़ेगा, क्योंकि हम कलयुग में जन्म लिया है। कलयुग में हमारी शक्ति आवरण आ गया है, उसके ऊपर लेयर लग गया है, जिनको दादा भगवान बोलते थे कि शक्ति फ्रैक्चर हो गई। तो अभी दादा की भक्ति के लिए, पढ़ाई के लिए, हमारा सुखाकारी जीवन के लिए हमने जो भी डिसाइड किया है कि हमें किसी को दुख नहीं देना है, वो कितनी बड़ी प्रार्थना है, कितनी बड़ी भावना है। तो अगर हम चूक जावे तो हमें लक्ष्य रखना है कि दुख हो गया, अभी से नहीं, बाहर से पता चले फिर बाद में मन से दुख होता है, में भी हमें जागृत रहना है। लेकिन आप बहुत पुण्यशाली है, आपको अच्छा संजोग मिला है। मैं आपके माँ बाप को, सभी आपदा पुत्रों को, महात्माओं को, सभी को मेरा नमस्कार है कि दादा का जो मैसेज है, दादा की जो कल्याण की भावना थी,
उसमें आज सभी महात्मा तन मन धन से लगे हुए हैं और सबकी भावना सफल हो। लेकिन प्रहर का एक ही क्वेश्चन लक्ष्य है रखना है कि दादा ने क्या बताया है और मुझे क्या करना है। बस वो बात कहीं न कहीं से भी आप समझ लो और उसका एक्सपेरिमेंट करो। मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं तो हमेशा दादा को कहता हूँ कि मुझे आपके पर भी शंका आ जाए, ऐसा मेरा कचरा माल पड़ा हुआ है। सिमंदर स्वामी भगवान को भी मैं कहता हूँ कि आप इतने समर्थ प्रत्यक्ष अरिहंत भगवान होते हुए भी मेरा मन कभी कभी आपसे मुझे दूर ले जा रहा है। प्रभु आप मेरे पर कृपा करना। तो मुझे लगता है कि आपको तो अच्छा है, आपको जरूरत पड़ेगी, हाँ दादा को प्रार्थना करने की जरूरत पड़ सकती है। हाँ पढ़ सकती है। तो बस, तो आपको पता चला है कि मुझे जरूरत है तो फोन लगाना, हे सिमंदर स्वामी, हे दादा भगवान, मुझे शक्ति दो, मुझे सही रास्ते पे चलना है। जो रास्ते पे आप मुझे ऐसा रास्ता दिखाओ कि मुझे अभी भटकना नहीं है, बस। आप प्रदीप समझे? दादा, हाँ जी, प्रहर का एक क्वेश्चन है, बोलिए। हाँ प्रहर। बताइए जी। मेरा क्वेश्चन है कि तीसरी और 8वीं कलम में आता है अवर्णवाद, अपराध और अविनय, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब अभी 9 कलमों की जो किताब है उसमें गुजराती में सभी 9 कलमों का एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है। लेकिन आपकी उम्र के हिसाब से मैं इतना ही बता देता हूँ कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, जितनी है इतना ही बोलना चाहिए। समझो किसी ने कोई एक बार झूठ बोल दिया तो हमें बोलना इतना ही बोलना चाहिए कि भी वो कभी झूठ बोलता है लेकिन वो हमेशा के लिए झूठा ही है, ऐसा बोलना वो अवर्णवाद है। क्या है, आप समझे? अवर्णवाद। हाँ, आदमी में कभी झूठ बोलता है वो, लेकिन बाकी की चीज में सच भी बोलता होगा कि नहीं बोलता होगा। इसलिए सभी इंसानों के अंदर कुछ अच्छाई होती है, 100% बुराई नहीं होती। लेकिन 100% बुराई की बात करना, वो समझ के साथ बोलना कि वो ऐसा ही है, वो अवर्णवाद है। समझे? समझे? तो हमें अभी आपकी उम्र में आपको क्या समझना है, 9 कलम दादा की हर बात समझने की जरूरत है। लेकिन आज के दिन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सुबह से शाम तक जो आपका जीवन जाता है उसमें आप कैसी कैसी गलतियां होती है, तो वो गलतियां को आप पूरे रिसर्च करो या उसका ख्याल रखो और वो गलतियों से आप मुक्त होने की कोशिश करो। मतलब वो रास्ता क्या है वो समझो, तो आपकी बुद्धि बंद होती जाएगी और ट्रैक पर चढ़ते जाओगे। क्योंकि शक्ति की जरूरत है। किसकी जरूरत है? शक्ति की। और शक्ति की जरूरत है, दूसरी सॉल्यूशन की जरूरत है। सॉल्यूशन किसकी जरूरत, क्यों जरूरत है? तो कि प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स कहाँ है? तो कि हमारे अंदर है। तो प्रॉब्लम्स क्या है, कैसा है, वो प्रॉब्लम को समझेंगे तो सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन आएगा तो हमें सुख शांति होगी, हमारी प्रगति होगी, दादा पर श्रद्धा बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी। समझे ना? मैं आपको एक बात बताऊं कि हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने से पहले हमें मम्मी 1 2 3 सिखाते हैं, बराबर है? हाँ मैं बराबर बोलता हूँ ना? तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए 1 to 10 1 to 100 इज करेक्ट है। फिर जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद सेकंड में जाते हो तो स्टेप बाय स्टेप आपको ABCD ये वगैरह वर्ड्स ये सब आपको सीखना पड़ता है और टीचर सिखाते हैं, बराबर है? फिर आगे जैसे जैसे आप स्टैंडर्ड में बढ़ते जाते हो तो उस समय आपको ऐसे लिखाते हैं, पोएम सिखाते हैं, क्वेश्चन आंसर में लिखना होता है। आपको समझ में आया मेरी बात? तो मैं अभी आपको लगता हो कि मैं बड़ा हो गया, लेकिन ये मेरी बात कर रहा हूँ। आपके लिए तो काम लगे तो ले लेना, लेकिन अभी मैं दादा का बच्चा भी बनने के लिए मेरे में क्वालिफिकेशन मुझे नहीं दिखती है। इसीलिए अभी मैं 1 to
10 सीखने की कोशिश में हूँ। इसीलिए कि रेगुलर त्रिमंत्र कैसे पढ़ा जाए, प्रार्थना कैसे की जाए, जीवन में जो हर संजोग में कैसे रहना है, कैसे बोलना है, वाणी से कैसे दुख होता है, मेरा जीवन कैसा है, वो अभी मैं ये सब उनके पीछे लगा हुआ हूँ। और मैं आपको भी यही बताता हूँ कि जब जब जितनी कमजोरियां हमें दिखेगी, जितनी गलतियां दिखेगी, तो ही उनका सॉल्यूशन आएगा। और जब ये सॉल्यूशन आएगा तो फिर आगे और हम बढ़ सकते हैं। जैसे आपको 1 to 10 आ गया, 1 to 100 आ गया, तो आपको पूछेगा कोई कि 1 and 2 इज इक्वल क्या होता है, तो आप बोलोगे 12, और 5 0 बोलेंगे तो 50, 1 5 मीन्स 15। आपको समझ में आया ना? तो हमें पहले ये चीज समझने की जरूरत है। तो मैं आपको निवेदन करता हूँ, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे स्टडी स्टार्ट करो कि डे बाय डे दादा भगवान की अनुभूति हो, आपके पास शक्तियों का खजाना है वो खुलता जावे, आनंद बढ़ता जावे, तो पूरा विज्ञान समझ में आ जाएगा। उसमें उम्र की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन बेसमेंट सॉलिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई भी बिल्डिंग आपको बनाना है, 10 माल की, 20 माला की, कितनी भी बनाना हो, तो वो हिसाब से हमें बेसमेंट मजबूत होना चाहिए। बिना बेसमेंट कोई भी बिल्डिंग रह नहीं सकती। वो त्रिमंत्र, प्रातः विधि, नमस्कार विधि, नवकल में शुद्धात्मा प्रति प्रार्थना, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा और सिमंदर भगवान की आरती, ये हमें रेगुलर बेस में हर रोज करने की जरूरत है। जब तक ज्ञानी पुरुष ने बताई हुई आज्ञा का पालन जितना हम करेंगे, तो उनकी कृपा हमारे पर बढ़ेगी। कृपा बरसती है, लेकिन बर्तन जब उल्टा रखा हो तो बारिश का पानी आता है, लेकिन बर्तन उल्टा हो तो पानी किधर जाएगा? बर्तन में जाएगा कि बाहर जाएगा? बाहर जाएगा। तो इसी तरह मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सभी को दादा की 5 बताई हुई चीज जो भी है, उसमें हमें थोड़ा थोड़ा सिंचर देने की जरूरत है। और फिर आप मुझे बताना, क्योंकि ये सभी जागृत पुरुष और ब्रह्मांड के श्रेष्ठ पुरुषों को नमस्कार बताया हुआ है। नव कलम सिर्फ दादा भगवान का प्रागट्य से पहले ये उन्होंने 40 साल तक ये आराधना की है, ये चीज हमें दी है। अभी हम जितनी समझ और वैल्यू कर सके, इतना हमारा कल्याण है। पूरा विज्ञान एक दिन आप छोटी उम्र में समझ पाओगे, लेकिन बेसमेंट बहुत आवश्यक है। क्या है? जैसे 1 to 10, 1 to 100, ABCD, लैंग पची ग्रामर, इसी तरह ये आपको, मैं दादा को आज प्रार्थना करता हूँ कि आपको जो दादा का विज्ञान और मार्ग पे चलना है, तो दादा की पूरी कृपा और सभी देवी देवताओं आपको सहायता करे। बराबर? चलेगा इतना? बहुत चलेगा? हाँ, चलो अभी टाइम हो गया है अपना बच्चों का। तो दीपक दादा, होमवर्क कभी चेंज करने का कि सेम करने का? दीपक दादा, दीपक दादा, हाँ या होमवर्क सेम रखने का या कुछ या ना अभी सेम ही रखिए, क्योंकि बहुत मिस होता है ना। ओके ओके, ठीक। हाँ ओके, ठीक है। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक दादा, रजनी दादा। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। तो अभी बड़े का क्वेश्चन लेगा, तो पहला मनीषा बहन। जय सच्चिदानंद प्रदीपानंद जी, कोटि कोटि प्रणाम। मुझे जागृति पे क्वेश्चन है कि दादा ने कहा कि जागृति ही आत्मा है और संपूर्ण जागृति ही केवल ज्ञान है। तो जो जागृति के बीच में जो आवरण है,
कि कौन सी चीज मुझे रोकती है जागृत रखने में, तो उसके लिए एक दादाजी का एक पैराग्राफ था जो मैंने अभी दीपक आनंद जी को भेजा है, तो वो स्क्रीन पे देख के જોવું જાણવું અને જાગૃતિ વચ્ચે શો ફરક? દાદાશ્રી કહે જોવું જાણવું અને જાગૃતિ બે જુદી વસ્તુ છે. જોવું જાણવું એ તો કરેક્ટનેસ છે અને જાગૃતિ તો વધઘટ થાય, આવરણને આધીન છે. હમણે જો કદી દૂધપાક ખાધો હોય તો જાગૃતિ ડૂલ થઈ જાય અને ભૂખ્યા રહ્યા હોય તો જાગૃતિ વધી જાય. દૂધપાક ખાઈ જોજો ને એક દહાડો જાગૃતિ કેટલી રહે છે ખબર પડશે દૂધપાકથી. तो जैसे ये एक आवरण है आहार का, वैसे आहार के आवरण के बारे में भी बताइएगा, इसमें थोड़ा सा बोला है दादाजी ने, पर ऐसे कौन से आवरण है जो मुझे जागृति में नहीं आने देते? देखो, और ये जोऊ जानवू वो करेक्टनेस है, वो तो जब जागृति बढ़ेगी तब वो करेक्टनेस की ओर जाएंगे. जागृति तो बढ़ेगी तभी तो जाएंगे, लेकिन ये कैसा है कि जो जानू जो बात है वो आत्मा का मूल स्वभाव है. क्या है? जी, मूल स्वभाव है, उनका स्वभाव है. ज्ञाता दृष्टा उनको बोलते हैं, शास्त्रों की भाषा में ज्ञाता दृष्टा बोलते हैं. ये आत्मा का मूल स्वभाव है. क्या है? जी, और जी, ये जो जागृति है वो हमें अभी प्राप्त तो हो गई है कि प्रज्ञा शक्ति खुली हो गई है, लेकिन ये अभी ये पुद्गल तो जो है उसमें हमारा पूरा कर्मों का हिसाब, फाइलों को तो सब बाकी है जी, फाइलों बाकी है, सब पेंडिंग है. जब तक ये फाइल पड़ी है तब तक तो जागृति कैसे आएगी? आएगी और जाएगी. जैसे कि आपने खाना खाया तो ये तो फिजिकल स्थूल दाखला दिया दादा ने जी, कि हम खाना खाते तो उनकी असर होती है, सभी चीजों की इफेक्ट है. क्या है? जी, जी, इफेक्ट तो है. कर्मों के जो आवरण है तो इनकी भी इफेक्ट तो आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि सब फाइल पेंडिंग है अभी. जी, जैसे देखो कि अभी आप समझो कि बीमारी का उदय आया, जी, बराबर. बीमारी का उदय आया तो ऑन दी स्पॉट हमें रहेगा नहीं कि मैं शुद्धात्मा हूं और ये प्रदीप भाई को बीमारी है, क्योंकि हमें अभ्यास नहीं है ना. जी, इसीलिए क्या होगा तो कि एक बार तो ऐसा हो जाएगा कि मुझे हुआ, तो ये जागृति है क्या अजागृति है? अजागृति है. हाँ, तो कि कर्म का उदय आया है तो कर्म के उदय के समय हम खुद मान लेते कि मुझे हुआ. आप समझे ना मेरी बात? जी, जी, जी. इसी तरह फिर ये प्रज्ञा शक्ति है, वो फिर जब अपने बताती है तो कि शरीर को हुआ है, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, ये व्यवस्थित ने भेजा है, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, ये तो संभव से निकाल करना है, तो फाइल है. तो धीरे धीरे फिर ये जागृति काम करती है. तो धीरे 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 फिर क्या है, तो ये अपना प्रज्ञा शक्ति क्या करती है कि किसी भी तरह हमें आत्मा की ओर ले जा रही है. मतलब कि ये अवस्था में हमें अवस्थित होने नहीं देती है. वो प्रज्ञा शक्ति का काम है. क्या है? जी, जी, प्रज्ञा शक्ति. लेकिन साथ में अज्ञा शक्ति भी है. अज्ञा शक्ति महीना बुद्धि. जी. हाँ, तो बुद्धि तो जब तक हमने इतने सालों से बुद्धि से इतने अवतार तक जिंदा रहे और सब व्यवहार उनकी बात मान के किया है तो बुद्धि थोड़ी चली जाएगी. ये तो जैसे जैसे हम प्रज्ञा की बात सुनते जाएंगे एम ऐसे ऐसे धीरे 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 प्रज्ञा शक्ति की ताकत बढ़ती जाएगी, अज्ञा शक्ति बंद होती जाएगी. तो फिर ऐसे करते करते इंटरिम गवर्नमेंट में से धीरे धीरे फुल गवर्नमेंट होती जाएगी. तो पूर्ण जागृति है. पूर्ण जागृति महीना स्थूल संयोगो, सूक्ष्म संयोगो, वाणी ना संयोगो पर है न पराधीन है. अवस्था मात्र कुदरती रचना है. मैं ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ, टंको तीर्ण हूँ, आनंद स्वरूप हूँ. वो धीरे धीरे प्रयोग से होता जाएगा. जी. फिर वो उनको स्पष्ट वेदन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्पष्ट वेदन. वो धीरे धीरे प्रयोग में जाने से ये अनुभव होता है. लेकिन ये कर्मों का धक्का है और कुछ नहीं है. अजागृति कैसे होती है? कर्मों का धक्का. और कर्मों का धक्का में दूसरा क्या है कि હું પણ ને મારા પણ. શું કહેવાય એને? હું પણ એન મારા પણ. એટલે અવસ્થાને
આપણે અત્યાર आज तक हमने ज्ञान मिलने से पहले हमें उनको यही समझा ना कि मैं हूँ और ये मेरा है, ऐसा ही रहा है ना अपने को। जी ये तो जी अभिज्ञान होते, धीरे धीरे ये मेरापन, ये सब हूँ पना छूट धीरे धीरे कम होता जाएगा। आप समझे ना? इसीलिए 5 जी आज्ञा की जरूरत है, इसीलिए मैं शुद्धात्मा हूँ, उस स्वरूप की आराधना की जरूरत है। तो सब हेल्पिंग फैक्टर है। હવે તમને બરાબર અજાગૃતિનું સમજણ પડી ને, કર્મોના ધક્કા, કર્મો ફાઇલો બધી એ જી હું પણ મારાપણું કરાયા કરે. શું કરે? जी 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 એટલે બરાબર અવસ્થામાં जब हूँ ये मेरा है और मैं हूँ, तब तक वो शुद्धात्मा में कैसे जाएगा? એટલે अजागृति हुआ कि नहीं? जी अवस्था में जागृत हुए तो स्वभाव में अजागृत हो गए। बहुत अच्छा, बराबर बहुत ही ने? अच्छा। शॉर्ट जी में जी जी बताता हूँ। जी जी परफेक्ट है। हाँ, और हकीकत में तो स्वभाव में रहना है, लेकिन ये तो कृपा से प्राप्त हुआ है, थोड़ी अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा। बराबर? जो मुझे भी आपने कोई बोला ना, वैसे अवस्था में ही जागृत रहते हैं। हाँ। जो स्वभाव में जागृत रहना है उसके बजाय हाँ, अवस्था उनको में ही जागृति जागृत बोलते हैं, रहते हैं। उनको वो जागृति पूरी बोलते हैं। अजागृति में ही रहते हैं। એટલે એને ગુજરાત મને હિન્દીમાં ફાવશે તો બોલી, પણ તમે એટલે એક એક અવસ્થામાં આ નોય મારું એમ સમજ્યા? बराबर जी जी હું जी શુદ્ધાત્મા જ છું, નિશ્ચય નિર્ણયથી કહે છે શુદ્ધાત્મા ही हूँ। फिर आंख दुखती है, पांव दुखता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, कुछ भी हो, मन वचन कायानी तमाम संगी क्रियाओं, तमाम अवस्थाओं मैं भिन्न ज हूँ। लेकिन ये दादा भगवान का अनुभव था और जी है, और हमें हाँ ये अनुभव करना है। जी तो दादा ने बताए हुए मार्ग पे हमें समझ समझ के चलना होगा। जी आपको क्या लगता है? जी जी मैं जी बोलता हूँ नहीं, बहुत बहुत रिकॉर्ड सही बोलती है। है। हाँ, रिकॉर्ड बोलती है। हाँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं लगता बोल है सकता। ऐसा। मुझे ये देखना है कि मैंने बोला वो भाग अंदर कुछ काम करता है, मैंने जी अच्छा जी बोला जी वो ज्ञान काम करता है, तो वो अजागृति है। करेक्ट करेक्ट और करेक्ट ये दादा भगवान की कृपा से निकलता है, और अंदर क्या चलता है, कैसे गलत होता है, वो पता चलता है। तो प्रदीप भाई को डांटना है कि मैं शुद्धात्मा हूँ। जी प्रदीप भाई, समझ ना पड़े तो बोल दो कि मुझे समझ में नहीं आता है, क्यों आप घुमाते हो? ऐसा आप समझे मेरी बात? हाँ 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 हाँ। चाहे तो बाहर ऐसी वाणी जागृति निकलती हो। ऐसी साइमल्टेनियस कैसे बढ़े अपनी हर नहीं, चीज में। हाँ, ये कृपा का काम है, ये कृपा हर महात्मा पर है, लेकिन हमें निश्चय पक्का करने की जरूरत है, जब मुझे लगता है। जी आपको क्या लगता है? जी निश्चय भी पक्का ही कर रहे हैं रोज रोज, पर कहीं ना कहीं कचाश जा रही है मैं बताऊं आपको, कि वो जो जी जो हमें हमारा घर है ना, हमारे जी कपड़े है, कोई भी चीज हमने जिसके पर मेरापन है कि ये मेरा जी है, उसकी केयर हम कितनी करते हैं? बहुत करते हैं। करते हैं ना? अगर समझो जी जी किसी ने जी इधर उधर कर दिया तो तो असर होती है ना? और नहीं, असर हो जाएगी। असर जी होती जी है। इसी तरह हमें, मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूं, वो जितना पक्का होता जाएगा जी तो हमें पता चलेगा कि ये रिलेटिव सुख है, उसमें जाने की जरूरत नहीं, मेरा सुख है वहां चला जाऊं मैं। जी आप समझे ना? जी 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 એટલે कहने का मतलब कि जितनी वैल्यू शुद्धात्मा पद की समझ में आएगी, आज्ञा की कीमत समझ में आएगी, दादा भगवान और सिमंदर स्वामी के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी, वो ही काम करने वाला है, क्योंकि वही समर्थ पुरुष है। जी आज सिमंदर स्वामी प्रत्यक्ष है, वर क्षेत्र में आज प्रत्यक्ष कोई नहीं है। नहीं तो दादा भगवान सिमंदर स्वामी के आगे हाथ जोड़ के दिखाते नहीं। लेकिन ये चीज
दादा की कृपा से ही समझ में आएगी। जिन्होंने मोक्ष पाया है, जो निरंतर आत्मा में रहता है, ऐसे पुरुषों की बात समझते जाएंगे, उनकी आज्ञा में रहेंगे, तो वो सुख हमें प्राप्त होगा। आप समझे ना? जी जी। तो हमें रिलेटिव ने हर चीज की वैल्यू की है। मेरे पैसे, मेरे घर, मेरे कपड़े, मेरे रिलेटिव्स, ये सभी चीजों में। और वो को आगे पीछे हो जावे तो हमको इफेक्ट होती है। वो जरूरी है, मैं ऐसा नहीं बोलता रॉन्ग है, लेकिन वहां से हमें लेसन लेना है कि इनकी वैल्यू भी आपने रखी है, तो डोंट वरी, यू आर राइट, बट आत्मा की तो वैल्यू रखो। जी शुद्धात्मा है तो सब है। जी, सही है। दादा भगवान की तो वैल्यू रखो, आज्ञा की तो थोड़ी वैल्यू रखो, उनका विनय तो करो। ये हमारा रिलेटिव है, रियल, दोनों को समान फायदा होने वाली चीज है। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल सही है। क्योंकि हमारे पीछे और कोई रास्ता ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है। जी बिल्कुल। मुझे जो समझ में आता है वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ हाँ, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। देखो, मैं एक और बात बताऊं। अगर जी कोई व्यक्ति को अगर मुंबई जाना है, जी। अगर वो प्लेटफॉर्म पे चला गया और ट्रेन स्टार्ट हो गई, अगर उन्हें डेयरिंग करके एक बार उन्होंने डंडा पकड़ के जहां भी आए वहां घुस गया, तो फिर क्या होगा? पहुंचेंगे, है मुंबई पहुंचेंगे। मुंबई पहुंचेगा ना? वो पहुंचेगा कि ट्रेन पहुंचा देगी? ट्रेन पहुंचा देगी उसको। उनको क्या करने का? दौड़ने का? उनको कुछ भी नहीं करना उनको है। क्या करने का? दादा भगवान ने बताया कि ट्रेन में से बाहर मत निकलो। जी। वो दादा भगवान की बात बताऊं, उन्होंने क्या बताया? अगर सूरत भी आवे, भरूच भी आवे, तो खारे सिंह भजिया ढोकला खाने के लिए बाहर मत निकलना। अगर शायद निकल भी जाओ ने, तो ट्रेन में स्टार्ट होने से पहले अंदर घुस जाना, नहीं तो फिर लटक जाओगे। तो वैसे ही हाँ। जो हमने दादा भगवान की ट्रेन में बैठे हैं, तो दादा ने कोई ऐसी कंडीशन नहीं रखी कि भजिया मत खाओ। आपको उतरने की भी ना नहीं बोली। उन्होंने बोला उतरो, नहीं उतरो तो अच्छा है, अगर उतर जाओ तो फिर चढ़ जाने का आपको, चढ़ जाना, क्योंकि आपका रिस्क है। क्या है? तो इसी तरह हम सभी महात्माओं को एक बार दादा भगवान को कोई चीज सौंप दी, सिमंदर स्वामी को सौंप दी, मैं फिनिश, मुझे मोक्ष में जाना है, आप जो भी करोगे मुझे मंजूर है। जी। इतना अंदर से अगर शक्ति कच्ची भी पड़ जावे, क्योंकि हम कलयुग के हैं, तो उनको बोलना पड़ेगा कि भगवान आपके प्रति मुझे श्रद्धा इतनी आती नहीं है, मेरा मन, मेरी बुद्धि मुझे हिलाती है, तुम मजबूत करो मुझे। बोलने में क्या नुकसान है, आप बताओ? वितराग कभी किसी को डांटते हैं क्या? जिसमें राग द्वेषी नहीं है, वो क्या हमारे से वैर लेगा? वो तो प्रेम की मूर्ति है, वो तो वात्सल्य मूर्ति है। क्या है? जी, प्रेम और वात्सल्य की मूर्ति। वात्सल्य मूर्ति है। तीर्थंकर भगवंतों के लिए वात्सल्य मूर्ति लिखा गया है, और दादा भगवान के लिए भी वात्सल्य मूर्ति लिखा गया है। अब हम हमें हमारी बुद्धि, हमारा मन, जो हम पूर्व भव से जो लेके आए हैं और जो कचरा अंदर पड़ा है, वो काम करता है, वो निकल रहा है, लेकिन उसकी झपट में नहीं आना चाहिए। हमें जागृत रहना चाहिए। अगर झपट में आ भी जावे तो क्या करते हैं अपने? समझो कि अगर कभी कोई रास्ते में जाते हैं, समझो कोई धुआं उड़ा और कुछ कचरा लगा, तो हम ऐसे करके कपड़े को साफ कर देते हैं ना। जी जी। पूरे दिन भर कोई भी परिस्थिति क्यों नहीं आवे, हमें दादा को और सिमंदर स्वामी को प्रार्थना करना चाहिए, और मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। और ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे हरिहर भगवान, हे दादा भगवान, आपके श्वास और उच्छ्वास में सिर्फ और सिर्फ जीवों की कल्याण की भावना है। आप अरिहंत भगवान हैं, आप अक्रम विज्ञानी दादा भगवान हैं। तो मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरे मन, वचन, काया और परमाणु में आपके पूरे संस्कार हो, आपकी पूरी शक्ति और ज्ञान मेरे में हो, मेरे में भी सभी की कल्याण की भावना हो।
जी ऐसा प्रार्थना नहीं कर सकते अपने? जी कर सकते हैं जी। लेकिन वही ये पूरा एक मार्ग, अफसोस हो जाता है कि ऐसे ज्ञात पिता मिले और हम काम नहीं निकाल ले इस बहू में, देखो तो क्या फायदा इस जीवन का। नहीं मनीषा ऐसा बहन, होता है। जैसे आपको रोना आता है, मैं तो रोना आता है तो मैं तो रोने के लिए भी अभी थक गया हूँ। मैं उससे आगे सोचता हूँ कि आप इतने समर्थ और सर्वज्ञ मिले मुझे। सर्वज्ञ महीना उनके आगे और कुछ Unmute. नहीं है, उनके आगे नमो सिद्धाणम ही Can है। you hear him? लेकिन फिर भी मैं आपता पुत्र होते हुए कैसे मैं बोलूं मैं आपता पुत्र हूं? जो मेरे हृदय में और मेरे श्वास उश्वास में जो भक्ति और उनके प्रति जो सिंसियरिटी होनी चाहिए वो मेरे में भी कमी है। क्या करूं? लेकिन फिर भी पीछे लगा रहता हूं, पीछे लगा रहता हूं, बस अभी थकना नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया कि दादा और सिमंदर स्वामी वो अल्टीमेट और फाइनल चीज है। हमारा कल्याण वही होने वाला ही है। और मैं पूरी दुनिया को भी ये बताना चाहता हूं कि बुद्धि मत लगाना, जो काम निकलना है तो अभी ट्रेन चालू है, जहां भी मिले वहां घुस जाओ, फिर रास्ता नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ट्रेन चलेगी लेकिन ये देह नहीं होगा तो क्या करेंगे? आप समझे ना मेरी बात? जी जी क्योंकि देह महीना, ये मनुष्य जीवन जो है उनकी बहुत बड़ी वैल्यू है। दादा ने ऐसा नहीं बोला खाना नहीं खाओ, काम नहीं करो, शादी में नहीं जाओ, धंधा मत, ऐसा नहीं है। हर चीजों में सिंसियर रहना है और साथ साथ में दादा की और सिमंदर स्वामी की भक्ति करनी है। तो हमें मजबूत होना पड़ेगा मनीषा बहन, हम जी सभी महात्माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम मजबूत बनेंगे तो ही दुनिया को काम लगेंगे। क्या दादा को क्या नहीं बीती होगी, 10 लाख साल में उनको क्या अनुभव नहीं हुआ होगा? ऐसे थोड़ा ज्ञान प्रकट हुआ है। सिमंदर स्वामी भगवान को क्या मुसीबतें नहीं झेलनी पड़ी होगी, आप बताओ। हमने कुछ, उन्होंने बोला नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, इसीलिए उन्होंने बहुत संजोग देखे हैं, लेकिन फिर भी एक ही लक्ष्य लेके चले थे, मुझे आत्मा प्राप्त करना है, जगत का कल्याण होना चाहिए। वो मार्ग पे चलते रहे और जो जो भी उन्होंने प्रार्थना की होगी, इसीलिए तो दादा ने 9 कलम दिए है हमको। उनकी क्या वैल्यू करूंगा मैं? मुझे कुछ करने को नहीं आता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। ये बच्चे लोग पूछते हैं तो मैं खुद घबरा जाता हूँ। लेकिन एक दिन अच्छा आएगा, हम सभी नक्की करना है। लेकिन दादा और सिमंदर स्वामी को मत छोड़ो। कैसे भी गलती हो जावे, कैसे भी कच्चे पड़ जाए, तो उनके शरण में उनको प्रार्थना करो, दादा मुझे बचा लो, आपके और मेरा, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। ये मेरा अनुभव की बात आपको बताता हूँ। जी जी ठीक है और मनीषा दादा और बहन, सिमंदर स्वामी जहां भी हाँ होंगे, जी पूरा देवलोक उनके साथ है, जी पूरा देवलोक। मैं आपको बता देता हूँ, जो दादा ने बताया जी था वो भी आपको बताता हूँ। ये मेरी कोई अंदर से रिसर्च भी नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ मुझे अनुभव होता रहता है और सभी जी महात्माओं को होता है। इसलिए आप नक्की करो कि किसी जी भी तरह, जैसे दादा तीर्थंकर भगवंतों को सिंसियर रहे, इसी तरह मुझे दादा को सिंसियर रहना है। देह का जी जो भी होना है हो जाओ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरा आत्मा में रहना है। आप समझे? जी कैसा लगा आपको? जी बहुत अच्छा अच्छे है ना दादा? जी दादा बहुत अच्छे है ना? अच्छे हैं। है ना? वो इतने अच्छे हैं कि ऐसा लगता है कि इतने अच्छे मिलने के बाद भी मैं कहाँ निकाल दूं तो ही फायदा है, नहीं तो फिर ये सब निकल बस जाएगा, एक और हो बस और जाएगा कुछ काम, नहीं। चिंता मत करो। हम सभी महात्माओं को बल देने की जरूरत है। हम जी सब कलयुग के हैं, हम सभी एक दूसरे को टेका करने का है, इसीलिए तो हम मिलते हैं ना। जी आप किसी को गिरने नहीं देना है, जी समझे ना? जी इसलिए घबराओ जी मत, दादा को प्रार्थना करो, भक्ति करो, जैसी हो गई भक्ति करो, बोल देने का मेरे में कोई बरकत नहीं है, आप मुझे जी संभाल लो बस। जी बराबर? जय ओ सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सचिदानंद, बहुत अच्छा मनीषा बहन। कश्यप भाई, सभी को जय सच्चिदानंद। जय दीपक सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, रजनी जी जय सच्चिदानंद। जय सचिदानंद। ये पद वो है
શુદ્ધાત્મા જોઈને શુદ્ધાત્મા થવાનું દાદા શક્તિ આપો ને. CD CD 31 बोलिए. उसमें एक दो लाइन है, संयोगो वियोगी તેથી સગળી દેહદ્યાસી વૃત્તિ બાળોને પંચાજ્ઞા પંચામૃત સરસ પાચક पुरुषार्थी पुष्टि आपो ने. तो इसमें जो पंचामृत है वो किसको पंचामृत कहा गया वो थोड़ा समझा दीजिए उसी लाइन. देखो, व्यवहार में जब अच्छा कुछ प्रसंग होता है, जैसे कि सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, कोई अच्छे धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें हमें पंचामृत महीना दही शक्कर दूध मध वगैरह डाल के उनको पंचामृत बोलते हैं. अच्छा, सर मोटू करू पड़શે પણ દીપક આનંદજી બોલી જાઓ ને સર. अरे भाई 1 मिनट. हाँ, નથી જશું, નીચે લઈ જશે. हाँ जी, ये आ गया. हाँ, बस बोलू હવે. हाँ जी. जो अभी संयोगो वियोगी તેથી સગળી દેહાદ્યાસી વૃત્તિ બાળોને એટલે वितराग भगवंतों ने और दादा भगवान ने बताया कि हिंदी ये पूरे जगत में दो चीज है, एक आत्मा है और आत्मा के अलावा दूसरे सभी संयोग है, और संयोग सब आयुष्य वाले हैं, इसीलिए संयोग मात्र वियोगी स्वभाव के हैं. जैसे हमको समझ में आता है कि सुबह होती है तो दोपहर होती है और फिर शाम हो जाती है, रात हो जाती है, फिर सुबह होती है, ये संयोग वियोग होता रहता है. वैसे ठंडी गर्मी का होता है, ऐसे आयुष का भी होता है, बच्चा होता है, बड़ा होता है, फिर बुढ़ा होता है, फिनिश हो जाता है. हर संयोग वियोगी स्वभाव के है, कोई संयोग कायम रहते नहीं है. और ये संयोग है उसमें हमें मन वचन काय के बारे में बताया है कविराज ने कि इसलिए इस जगत के सभी चीज है वो वियोगी और विनाशी है. इसीलिए તેથી સગળી देहाद्यासी वृत्ति बाड़ों ने, એટલે जो मन वचन काया को मैंने माना है कि मैं खुद आप प्रदीप हूँ, प्रदीप आनंद जी हूँ और मैं ये हूँ वो देहाद्यास वाली वृत्ति है, उसको इससे मैं दादा भगवान मुझे मुक्त करो, उसका पूरा नाश हो और ये देह होते हुए भी मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा हूँ, वो मेरा लक्ष्य रहे. और वो लक्ष्य के लिए क्या रास्ता बताया है तो कि जिन्होंने दृष्टि प्राप्त हुई है उनको बोला कि पंचाज्ञा रिलेटिव रियल व्यवस्थित करता फाइलों नो संभावे निकाल और मैं शुद्धात्मा हूँ एना ચોપડો. એટલે पंचाज्ञा पंचामृत એટલે કે मन वचन काया ये मृत એટલે विनाशी છે, और ये 5 आज्ञा है वो आत्मा को निरावरण करने वाली है, केवल ज्ञान स्वरूप खुला करने वाली है, इसीलिए उसको पंचामृत बोला गया है. वो अमृत है, परमानेंट, अपने को जन्म मरण से मुक्त कराने वाली है, इसलिए पंच आज्ञा की वैल्यू है. सरस पाचक पौरुषार्थी पुष्टि आपो ने, और दादा भगवान को प्रार्थना किया है कविराज सिंह ने कि सरस महीना के पाचक मुझे ये 5 आज्ञा और ये पूरा विज्ञान मुझे डाइजेस्ट हो जावे, मेरे वर्तन में आ जावे, मन वचन काया में, ऐसी और पुरुषार्थ कर सकूं, ऐसी मुझे शक्ति दो. पंचाज्ञा को ही पंचामृत बताया ना इसमें, लिखा है ना साथ में पंचाज्ञा पंचामृत, कॉमा लिख के पंचामृत को पंचाज्ञा को पंचामृत के उनको क्या बोलते हैं उनको, उनकी હવે એને શું કહેવાય
દીપક આનંદજી જરા બતાવજો ને શું કહેવાય એને ઉપમા આપી છે કે શું કહેવાય એને કહેવાય उपमा दी है। हाँ जी। हाँ, ये पंच आज्ञा पंचामृत है। मीन्स ये 5 आज्ञा जैसे पीने से, पानी पीने से जैसे ठंडक होती है, ऐसे 5 आज्ञा का पालन करने से आपको जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे, ऐसा उनका मीनिंग होता है, मुझे समझ में आता है। फिर भी अगर बोलो तो आप दीपक आनंद जी से आपने पूछते हैं, दीपक आनंद जी क्या बताते हैं? जैसे पंचामृत को श्रेष्ठ बताया है, तो ये 5 आज्ञा पंचामृत जैसा काम करती है। अच्छा, ठीक है, समझ। ठीक है कश्यप भाई। जय सच्चिद। जय सच्चिदानंद। हेमा बहन। हेमा बहन। हाँ 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 बोलो। बराबर। પ્રદીપાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। દીપક દાદા જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। દાદા કહેતા હતા યુએસએ માં તમે યુએસએ માં કેમ આવવાનું થયું? તો દાદા કહે છે કે રેલ આવી, રેલ આવે ને એ રીતે રેલ આવી એટલે પૂર આવ્યું એટલે બધા કુટુંબના માણસો સુખી થઈ જાય એટલે પૈસા ખૂબ મળ્યા અને આપણે આવ્યા એટલે આપણા સગા સંબંધી બ્લડ રિલેશનના લોકોને બોલાવ્યા અને બધા સુખી થઈ ગયા, બરાબર? પછી કે છે સાંભળજો, પૂર જાય તો પછી કાપ મૂકીને જાય. દાદા કે છે કાપ મૂકીને જાય, એ કાપ તમારે કાઢવો પડે. આમાં શું સમજવાનું આ વાક્યમાં? જો કાપ એટલે કચરો, હા એ તો ખબર પડી, જેને આપણે ગંદવાળો કહીએ हिंदी हाँ। हिंदी हिंदी। देसी भाषा में। अभी इसी तरह दादा भगवान ने क्या बताया, आप लोग अनसमझ के आधार पर, अज्ञान और अनसमझ से आपने सब तो कचरा इकट्ठा कर दिया, लेकिन उसको शुद्ध कौन करेगा? तो हमने जो कल्याण की भावना की थी, तो अगर आप मुझे मिले तो अभी तो मेरी गरज है मोक्ष में ले जाने के लिए, इसीलिए सब कचरा मुझे ही साफ करना पड़ेगा। तो दादा भगवान ने कचरा साफ करना महीना शू कि जितना उनसे हो सका वो ज्ञान विधि और दूसरी विधि और प्रार्थना सब करके करके हमको स्वरूप का ज्ञान दिया और हमें शुद्ध बनाया। जैसे पानी और बर्फ का जो बताया ना, पानी और वराड़ का जो कर्मों को जला के खाक कर दिया, और थोड़े सी जो कर्म रहे हुए हैं जो कचरा, वो हमें 5 आज्ञा से शुद्ध प्रदीप करना भाई वो होगा। तो समझ में मेरे को आता है, पर फिर भी दादा ने बोला ना कि ये सब कांप निकालने का, तो सबका कांप निकालने का कि हमारे पोता खुद का कांप निकालने का? वो मेरे समझ में नहीं आता है, क्योंकि दादा ने क्या बोला वो आशय मेरे को अभी तक समझ में नहीं अच्छा, आया। હવે બીજો પ્રશ્ન એ જ વખત હતો. એ પછી દાદા મને કે લગભગ અમારા ઘરમાં 14 જણા રહેતા હતા, ત્યારે દાદા આવતા હતા અને દાદા મને પૂછે કે સવારના નાસ્તો કરીને બેસે, પછી મને પૂછે કે એમાં કેટલી થાળીઓ પડે છે? એટલે મેં કીધું દાદા 14 થાળી પડે છે. એટલે અમે 14 જણા, બધા છોકરા બોકરા બધાથી 14 જણા ઘરમાં રહેતા હતા. પછી કે છે મને ધીરે રહીને કે છે ટ્રેનિંગ આપે ને તો ત્યાં રહે અને ટ્રેનિંગ વાળો માણસ ટ્રેનિંગ લઈ લઈને એ માણસ આગળ જાય, માટે બધાને $200 આપીને જુદા કાઢવા. દાદાએ આ વાક્ય મને કીધેલું. હવે આમાં શું સમજવાનું? ડીપ ડીપ આમ તો ઉપર પછી સમજણ પડે છે કે બધાને જુદા કાઢવા, લમણા કૂટો ના કરવી, પણ આમાં મારે શું સમજવું? નહીં એટલે તમારે સમજવાનું, મને તો એટલું વ્યવહારથી સમજાય છે કે દાदा ભગવાને हमने પણ हिंदी। हाँ, दादा भगवान ने हमें सभी आप तो पुत्रों को उनसे दूर कर दिया था और सत्संग के लिए ट्रेनिंग भी दी थी। तो ये सभी लोग को डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहिए, सभी अच्छा। लोगों को अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम कितने टाइम कर सकेंगे, तो सभी को स्वतंत्र बनाना चाहिए। जैसे दादा भगवान ने पूरे सत्संग में यही किया है कि व्यवहार में और ज्ञान में तो सबको स्वतंत्र बना दिया। आप देखोगे उनकी कितनी खानदानी है और कितनी બરાબર છે.
समझ है। तो इसी तरह सबको डिपेंडेंट नहीं रखना चाहिए। धीरे धीरे उनकी शक्ति बढ़े, अनुभव से आगे बढ़े। आप समझे ना। और दूसरी तरफ से देखे तो ये पूरा व्यवहार ऐसी चीज है कि उसके अंदर आप लिपटते रहोगे सुबह शाम, तो फिर आत्मा का कुछ नहीं कर पाओगे। आप समझे ना। तो सबको स्वतंत्र भी बनाना है, सबको आगे बढ़ाना भी है, और हमें खुद भी आगे बढ़ना है। तो व्यवहार की और निश्चय की दोनों को बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस। ये दादा भगवान की बात मुझे ऐसी समझ में आती है। लेकिन फिर भी अगर आपको समाधान नहीं हो तो पूछना दूसरे कोई आपका पुत्र को। ओके, दीपकाने जरा प्रकाश नाखशो तमे। हाँ, नाखशो ने नाखशो के व्यवहार ऐसा है ना कि अगर आप करते रहेंगे ना तो लोग सीख नहीं पाएंगे। जो 14 लोग आपके वहां रहते थे तो बोले ये $200 एक बार देना पड़ेगा, $200 एक बार देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो $200 बचाने गए तो आपको कितने समय तक उनके पीछे लगे रहना पड़ेगा। आप समझे। तो ये व्यवहार का सॉल्यूशन बहुत अच्छा दे दिया कि सबको इंडिपेंडेंट कर दो। आए आपने संभाला, अच्छी बात है, लेकिन उनको भी वो महसूस करना और जिम्मेदारी समझना जरूरी है। अच्छा, ठीक है। व्यवहार में तो कैसा है ना कि अगर आप करेंगे ना तो अच्छा है, आप करते ही रहेंगे। नो, आ तो આ પ્રમાણે અમે કર્યું છે, પણ મને એમ થાય કે ખરું કર્યું છે કે ખોટું કર્યું છે? આ જે પ્રમાણે બધાને ઠેકાણે પાડ્યા, બધાને आपने सबको ठिकाने लगाया, अच्छी बात है। लेकिन जो आप करते थे, घर पर ही रखते थे, तो वो सही बात नहीं था। तो दादाजी ने आपको मार्गदर्शन दिया कि $200 देकर भी उनको मुक्त कर दो, यानी पैसा देके उनको फ्री कर दो और आप फ्री हो जाओ। अच्छा, ठीक है हेमाबेन। अच्छा, બહુ સરસ, બહુ સરસ. જય તરુબેન સચ્ચિદાનંદ. સાંભળજો, આ સવાલ મારો હતો. જય સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રતિકા નકલ સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રદીપાનંદજી, સચ્ચિદાનંદ, જય પ્રકાનંદજી જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય શ્રી. આપણે છે ને વ્યવહાર ઉપર વાત ચાલે છે સાહેબજી, હમણાં સેશન વ્યવહાર ઉપરનો દાદા ભગવાનનો. એટલે વ્યવહાર ऊपर ही क्वेश्चन है अभी कि व्यवहार यानी क्या? दादा भगवान कहता है कि अक्रिय आत्मा नी बहार ते बधोय व्यवहार। बराबर। हाँ जी साहब, थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा समझा। व्यवहार महीना के कर्मों के हिसाब, राग द्वेष का हिसाब। आत्मा तो वितराग है, अकर्ता है, ज्ञाता दृष्टा है, बराबर में। लेकिन जब तक वो केवल ज्ञान नहीं हुआ है तब तक तो शुद्धात्मा भगवान तो जीव मात्र में बैठे हुए हैं। लेकिन ये आत्मा की मुक्ति कभी होगी? नमो सिद्धाणम कभी होगा? तो ये मन वचन काया का जो व्यवहार है वो 5 आज्ञा से ज्ञानी पुरुष की आज्ञा के आधार पर जितना व्यवहार होता जाएगा तो धीरे धीरे व्यवहार 0 होता जाएगा, केवल ज्ञान खुला हो जाएगा। नमो सिद्धाणम, क्योंकि मन वचन काया का व्यवहार है, आत्मा का व्यवहार नहीं। लेकिन आत्मा की हाजिरी से होता है। क्या होता है? आप समझे ना। इसलिए उसको अक्रिय बोला ना सर? नहीं, आत्मा अक्रिय है, लेकिन ये ज्ञान क्रिया और दर्शन क्रिया का करता है। ये मन वचन का है कि स्थूल क्रिया का करता नहीं है ना, नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया कि ज्ञान क्रिया व्याम मोक्ष, अज्ञान क्रिया व्याम संसार। और क्रिया किसकी है? तो कि देखो साइंटिफिकली दादा भगवान ने बताया कि मन वचन काया वो क्रियाशील स्वभाव है। क्या है? पूतगल क्रियाशील स्वभाव वाला है, और आत्मा है वो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है। लेकिन ये दूसरे एविडेंस मिलने से पूतगल खड़ा हो गया। समझे ना। पूतगल खड़ा हो गया। अभी ज्ञान मिलने के बाद सभी महात्माओं जब शुद्धात्मा में रहेंगे, 5 आज्ञा में रहेंगे,
मन वचन काया के ज्ञाता दृष्टा रहेंगे तो ये क्रियाशील वाला जो पूतगल भाग है वो उनका व्यवहार धीरे 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 जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, बराबर। हाँ हाँ हाँ। उनको और आत्मा ज्ञाता दृष्टा रहेगा तो धीरे धीरे वो निरावरण होता जाएगा। तो एक तरफ पूतगल शुद्ध हो जाएगा, एक बाजू आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप खुला हो जाएगा, दोनों की छुट्टी हो गई। तो ये 5 आज्ञा का पुरुषार्थ इसीलिए दिया गया है। पुरुषार्थ में है। और परमाणु की तरफ से देखो तो विश्रसा परमाणु हो जाएगा। हाँ जी। ये परमाणु अभी जो अंदर है बॉडी में ना परमाणु का पुतला है, और क्या है? परमाणु का पुतला। हाँ। इसीलिए अपने शॉर्ट में समझने का राग द्वेष का हिसाब है, क्या है? हाँ जी हाँ। ये आत्मा में राग द्वेष नहीं है, नहीं, पुद्गल में आत्मा राग द्वेष है। भी क्या नहीं है। समझे ना? आत्मा अक्रिय है, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा अव्याभास स्वरूप है, आत्मा अनंत सुख का धाम है। आप समझे ना? हाँ जी सर, वो भी अपने बोला ना दादा भगवान ने कि शुद्ध व्यवहार बाद में आता है ना, व्यवहार के बाद में शुद्ध व्यवहार। तो शुद्ध हाँ। व्यवहार यानी कि राग द्वेष रहित हो गया, वही अपना शुद्ध व्यवहार। तो राग द्वेष रहित हो गया तो वही समभावी निकाल भी हो गया ना उसका अरे हो गया ना, हो गया। अभी राग द्वेष रहे ही नहीं ज्ञान मिलने के बाद। यानी सब राग ज्ञान द्वेष मिलने के बाद राग द्वेष कहाँ रहा? अपने तो शुद्ध आत्मा हो गए, शुद्ध आत्मा में राग द्वेष है ही कहाँ? नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ। अभी जो उनको राग द्वेष कभी बोलते हैं कि जब तक अज्ञानता है, तक अहंकार है, ममता है कि मैं देते वो मैं हूं, तब तक वो राग द्वेष है ही। कितना भी कुछ करो। हिमालय में जाके ऊंधा लटक जावे फिर भी राग द्वेष है। हाँ जी। अगर जो अपने को शुद्धात्मा पद ज्ञानी पुरुष की कृपा से मिला है ना, वो हर रोज शादी में जावे ने और अच्छे कपड़े पहन के अच्छा अच्छा खाना खाए, फिर भी राग द्वेष नहीं है। क्योंकि अक्रम विज्ञान है। ये क्या है? अक्रम विज्ञान है। हाँ। यानी कषाय रहित व्यवहार हो गया अपना। कसाई गए, खत्म हो गए। कसाई है ही नहीं। अभी ये तो डिस्चार्ज है, उनको सिर्फ डिस्चार्ज है, भरा हुआ माल निकल रहा है। हाँ, कषाय भरा हुआ माल निकल रहा है। शुद्धात्मा हो गए मीन्स फिनिश। नहीं तो शुद्धात्मा प्राप्त की वैल्यू क्या है? अगर जो दादा ने ज्ञान दिया और मैं शुद्धात्मा पद मिला, अगर क्रोध मान माया लोभ है, राग द्वेष है, तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। तो सहायक संकित है। क्या है? सहायक संकित का। हाँ, जो कृष्ण भगवान को सहायक संकित था वो सहायक संकित हमको मिला है। खरेखर दादा भगवान जो बोले थे, बताते थे, वो मैं रिपीट कर रहा हूँ। ખરેખર આપને શું મળ્યું છે એ બહુ મોટી ખજાનો ગયા છે। ठीक है अपने को गीता बहन। दादा ने दिया है, लेकिन हमें समझ उनके पीछे हम लगे ही नहीं दादा ने क्या दिया। अपने को आनंद आता है ना तो अपना चलता है, चलो दादा है ना हमारे पास, बस ऐसा है वो। और भी फिर भी वो अच्छा है। जय सच्चिदानंद। गीता बहन थैंक यू। ऐसे क्वेश्चन लेके आना रोज। अभी प्रदीप आनंद जी अपना टाइम हो गया है एक्सपीरियंस सुनने का। तो दीपिका आनंद जी। जय सच्चिदानंद। आज हमारे बीच बहुत बड़े परिवार से जो दादा से बहुत जुड़े हुए थे, उनका एक और फूल आ रहा है, खिला हुआ फूल, जो अपना अनुभव बताएंगे दादा भगवान के ज्ञान का। पधारिए किशन जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद रजनीकांत भाई। जय सच्चिदानंद प्रदीप आनंद जी। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सभी महात्मा। प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षी वर्तमाने महाविदे क्षेत्र में विचरता तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छुं। भरत क्षेत्र हाल विचरता सर्वज्ञ श्री दादा भगवान ने निश्चय थी अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छुं। प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षी सर्वे समकितदारी महात्माओं ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छुं। सर्वे आप्त पुत्रों ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छुं। जय सच्चिदानंद। आप सब महात्माओं को जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। सबसे पहले मैं माफी मांगूंगा, मुझे हिंदी ठीक तरह से आती नहीं है, जो भी टूटी फूटी आती है मैं कोशिश करता हूं। अब मैं शुरू करूंगा कि मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मैं एक शाहनी परिवार में पैदा हुआ, बड़ौदा में पैदा हुआ, जहां पर ज्ञानी पुरुष ज्ञान देने वाले थे। और ऐसे शहर में पैदा होने के बाद ऐसा परिवार होना जो इसमें मुझे धकेले, इसमें मुझे ले जाए, इसमें मुझे समझाए। तो ये बात शुरू होती है 1973-74 में। मैं एमएस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, कॉमर्स फैकल्टी में था, गुंडागर्दी फुल करता था, सब किस्म की हरकत, मस्ती, धमाल मस्ती सब कुछ करता था। लेकिन एक बात सही है कि हमारे घर में क्रमिक टाइप का कोई न कोई सत्संग चलता रहता था। तो कितना भी कुछ भी मैं करके आऊं, घर आकर के श्री राम जय जय राम मम्मी बुलवाती, या हमारे क्रमिक गुरुओं के पास ले जाती। तो मैं इतना समझता था कि भगवान कोई और है और वो उसको प्रार्थना करने से हमारा काम हो जाता है। अभी इस टाइम दरमियान हमारे बड़े भैया राजेंद्र भैया ने ज्ञान ले लिया। उनको भगवान की खोज थी। ज्ञान लेने के बाद उनको ऐसे लगा कि मैं सारे घर को तुरंत ज्ञान दिलवा दूं, ऐसा ज्ञान है। तो उसके बाद केशव आनंद जी ने ज्ञान लिया। दादा ने कहा कि भाई ये तो तुम फंस जाओगे। बोले जहां बड़े भैया फंसते वो फंसने वाली जगह अच्छी है। फिर कन्या भाई ने ज्ञान लिया। फिर राजेंद्र भैया मेरे पीछे पड़ गए कि भाई ये गुंडागर्दी छोड़ दे, थोड़ा यहाँ पर चल, और भगवान आए हैं तो भगवान से एक बार मिल तो ले। तो मुझे एक किस्म का डर रहता था कि भाई अगर मैं इस उम्र में, 19 साल की उम्र थी, इस उम्र में अगर मैं गया तो मैं फंसा तो मैं तो फिर मस्ती मजाक कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो क्योंकि मैं नाटक करना, थिएटर करना, पिक्चरें देखना, घूमना फिरना, यही मेरी जिंदगी हुआ करती थी। थोड़ा बहुत पढ़ लिया। और जैसे मैंने कहा 73-74, तो 74 नवनिर्माण का टाइम था गुजरात में। तो उसमें मैं यूं ही पास हो गया। अभी भैया ने बोला तू पास भी हो गया, अभी तो तू दादा के पास एक बार चल ले। तो रात को मेरे के कभी केशव आनंद जी, कभी कन्हैया भाई, कभी राजेंद्र भाई, ये तीनों भाई का मैं बहुत ऋणी हूं। इन तीनों ने मुझे इतना सत्संग दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। रात के 2-3 बज जाते थे। हमारी माँ उठ करके आ जाती थी कि बेटा क्या कर रहे हो। तो राजेंद्र भैया बोला करते थे कि भाई मम्मा इसको आप बताओ, दादा के पास चल नहीं रहा है, 6 महीने से इसके पीछे पड़े हैं, चल नहीं रहा है। तो ऐसे करते 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 एक दिन कन्हैया भाई, मई जून का महीना था, 73-74 का टाइम था, मुझे स्कूटर में बिठा के ले चले और बोले कि आज दादा का ज्ञान ले ही लो। मैंने कहा यार मैं न मिला हूं, न कुछ बात की है, न कुछ पता है, कुछ भी पता नहीं है। बोले कुछ पता करने की जरूरत ही नहीं है, वहां सब ठीक हो जाता है। तो मैं वहां गया और नाम लिखा गया। और जैसे ही मैंने अंगूठे पे सर रखा, क्योंकि अंगूठे पे सर रखने के बाद विधि, समर्पण विधि शुरू होती है। तो जैसे जैसे समर्पण विधि होती गई तो पता नहीं ऐसे प्योरिटी के वेव्स आते गए बॉडी में। और जैसे ही ये पूरी हो गई तो मुझे ऐसे लगा कि मैं अभी इनका ही हो गया हूं, दादाजी का। तो दादाजी ने मुझे सामने देख करके जय सच्चिदानंद जब कहा, और कहा कि जो भी मैं बोलूंगा वो पीछे दोहराना और जोर से बोलना।
आंखें खुल जाए तो फिर बंद कर देना, लेकिन बंद ही रखना तो ज्यादा अच्छा है। बस इस तरह थोड़ी देर के बाद ज्ञान विधि शुरू हो गई। हूं शुद्ध आत्मा छो, वहां से शुरू हो गया। मैं बोलने लग गया। धीरे धीरे दादा के जो वाक्य हैं, ऐसे ज्ञान वाक्य जो जैसे कि मन वचन कायाति तद्दन जुदो एवो शुद्धात्मा छू, तद्दन नोखो एवो शुद्धात्मा छू। तो मैं जैसे ना ये पूरा ट्रांसलेट हो रहा था, पूरा बॉडी के अंदर मेरे माइंड के स्क्रीन में हर एक वर्ड ट्रांसलेट हो रहा था। और क्रमिक में से मैं जैसे कोई ऐसा ज्ञान में 1 to 1 गॉड के साथ मेरी लैंग्वेज चालू हो गई, ऐसे शुरू हो गया। ऐसे लगने लगा कि मैं बात समझने लग रहा हूं अभी। तो जैसे जैसे वाक्य आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे सेंटेंसेस आगे बढ़ती गई, दोबारा बोलते गया, तो अंदर से पता नहीं एक अनंत किस्म की शक्ति जो मुझे दिखा रही थी, जो मुझे समझा रही थी कि तू कौन है, तू अलग है। तो धीरे धीरे जैसे विघ्नो अनेक प्रकार ना होवाती तेनी सामे हूं अनंत शक्ति वालो छू। अरे कैसा भी विघ्न आ जाए मैं अनंत शक्ति वाला हूं। तो ये ट्रांसलेट होता था, ये समझ में आने लगता था। जो मैं ऐसे समझता था कि ये पता नहीं क्या होने वाला है, तो अंदर एक डर भी लग रहा था और अनंत खुशी भी हो रही थी कि मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, ऐसी अनंत खुशी मिल रही थी। तो और उनकी जो फेवरेट मेरी जो सेंटेंस है, अवस्था मात्र कुदरती रचना छे जेनो कोई बापोए रचनार नथी। वाह, मुझे उस वक्त फर्स्ट टाइम महसूस हुआ कि लॉर्ड कृष्णा भी करते नहीं है। मुझे लगा कि कहीं बैठ करके वो कुछ ये संसार चलाते हैं। तो वहां पर वो टूट गया, मेरा निकल गया और बात साफ हो गई और क्लैरिटी में आ गया मैं कि यस, ऊपर कोई बापोए नहीं। तो आई कुड सी कि पूरा यूनिवर्स में बस कोई शक्ति है जो चला रही है और कोई है नहीं, और भगवान अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं। तो ये जैसे वाक्य पूरे चलते गए और बाद में जब वो बोलते हैं हूँ सिमेंदर स्वामी भगवान जो शुद्धात्मा छू, हूँ दादा भगवान जो शुद्धात्मा छू, तो मैं अपने आप को भगवान समझने लग गया। मैं उस जमाने की बात करता हूँ जहां पर क्रमिक का मेरा पूरा माइंड सेटअप था। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं भगवान बन रहा हूं और मैं भगवान अभी बनने वाला हूं, या भगवान बन चुका हूं, या बनने की कोशिश कर रहा हूं, या बनने की क्रिया चालू हो रही है। ये सब घमासान चल रहा था। तो ये करते करते जैसे ही ज्ञान पूरा हो गया और आंखें जब खोली तो मुझे ऐसे लगा कई वाक्य हैं अंदर, मतलब वो बड़े गजब के वाक्य हैं जो किसी शास्त्र में नहीं है। ऐसे जैसे हम बात करते हैं ऐसे वार्तालाप के सारे वाक्य हैं, लेकिन गजब के वाक्य, वो वाक्यों ने मेरे को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया। एक गुंडा आदमी एक ही रात के अंदर कुछ सीधा होने लग गया। मुझे अंदर एक शॉकिंग भी लग रहा था, समझ में भी आ रहा था कि ये सब चेंज हो रहा है और चेंज हो गया है। तो मैंने कहा यार अभी दादा क्या बताएंगे पता नहीं, अभी तो हम अलग हो गए, तो अभी हम चलेंगे कैसे। तो दादा की 5 आज्ञा शुरू होती है, एंड आई टेल यू आउट ऑफ द वर्ल्ड है। दुनिया के किसी किताब में, किसी जगह पे, किसी शास्त्र में इस किस्म की सिंप्लीफाइड और क्लैरिटी और इतनी लॉजिकल आज्ञाएं मैंने न कभी पढ़ी थी, न सुनी थी, न देखी है। ऐसी गजब की आज्ञाएं सुनने में इतनी सुंदर, ऐसे लग रहा था कि बस अभी जाके मैं ये आज्ञा शुरू कर दूंगा। लेकिन इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल दादा करके बताते हैं। हालांकि ऐसे लगता भी है कि बहुत सिंपल है, लेकिन जब घर जाते हैं तो ऐसे लगता नहीं कि इतना इजीली हो जाएगा। लेकिन फिर दादा ने कहा कि अभी ये रात को जैसे जाओ तो 5वीं आज्ञा
खुद को सुनाई दे। ये भी देखो दादा की कितनी गजब की साइंस है, मैं कभी समझ नहीं पाया, बाद में कुछ टाइम के बाद समझ में आया कि ये वाइब्रेशंस होना बहुत जरूरी है, कि खुद को सुनाई दे, मन में भी बोलना नहीं है, सुनाई देना चाहिए खुद को भी, तो वो वाइब्रेशंस वो आने जरूरी है, वही काम करेंगे और वही आपको शुद्धात्मा में पूरी रात रखेंगे। ये बहुत गजब की बातें दादा की। ऐसे करके मैं फिर घर पहुंचा, घर सबको शुद्धात्मा देखने लग गया। मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई मुझे कैसे देख रहा है, मैं कैसे देख रहा हूं, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा अभी ये जब सोऊंगा मैं, तो ये सब शुद्धात्मा सो जाएंगे, तो जैसे ये 3 शुद्धात्मा है, केशव आनंद जी, राजेंद्र भैया, कन्हैया भाई, वो तो मेरे तरह ही सोएंगे, लेकिन बाकी के सब है जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया है, वो क्या सोचते होंगे, कैसे सोते होंगे, तो मैं भी उनको बताऊं। तो मेरे को वो राजेंद्र भैया जैसा हो गया बीमारी, कि अभी इन सबको ज्ञान में ले आना चाहिए। मैंने कहा दादा एक ही रात में आपने पूरा तख्ता पलट कर दिया, एक ऐसे अजीबो गरीब गुंडे आदमी को आपने सीधा कर दिया, तो आपका तो ये ज्ञान पता नहीं कहाँ ले जाएगा दुनिया को। तो इसी तरह कुछ दिन बीते, कन्हैया भाई फिर मुझे स्कूटर पे बिठा के ले चले और दादा के ज्ञान, दादा को मिले, दादा ने बोला आओ इधर विधि कर लो। तो विधि तो कर ली और बहुत खूबसूरत सा हार मेरे गले में डाल दिया। नाउ इमेजिन क्या बोलते हैं कि ये हार पहनकर तुम घर जाओ, चलते जाओ। मैंने कहा मैं कॉलेज में एफआर हूं, लड़के लड़कियां दोस्त यार सब देखेंगे मुझे पागल कहेंगे, लेकिन अभी दादा ने मुझे तो बोला चलते जाओ। और इतने बड़े शहर में करीब 4-5 किलोमीटर घर दूर है, और बाबू काका का जो सत्संग हॉल है वहां से चलते जाऊं, टावर से, मांडवी से, पानी गेट से, आजवा रोड। मैंने कहा यार कोई बात नहीं। नटू काका जी ने बोला उतारना मत, पहने ही रहने देना, दादा की आज्ञा है। मैंने कहा 18-19 साल का लड़का, कॉलेज के लड़के लड़कियां देखेंगे तो मरे, लेकिन कोई बात नहीं, दादा ने बोला है, आज्ञा दी है, चलो। तो यू विल बिलीव कई पहचाने चेहरे रास्ते पे हंस रहे थे कि ये कल तक तो सीधा था, आज इसको हुआ क्या है, हार पहन के शहर में चलते जा रहा है, हंसते जा रहा है। तो मैं तो मन में शुद्धात्मा शुद्धात्मा करके चलते पड़ा। तो शहर में जैसे मैं ये चलते जा रहा था, तो कई कॉलेज के स्टूडेंट्स, कई लड़कियां हंसते रहे, बोलते रहे, और मैं भी उनके सामने देख के हंसता रहा, चलते रहा, आगे चलते रहा। ऐसे करते करते मैं घर तो पहुंच गया, तो घर में भी सबको शुद्धात्मा देखने लग गया। काफी परिवर्तन आ गया। तो ये परिवर्तन इतना गजब का था, मुझे बड़ा आनंद और बहुत खुशी मिल रही थी कि मैं ऐसे सोच रहा था कि अब ये हार पहन के ही सो जाऊं। और यू विल नॉट बिलीव इतना सुकून मिला, 2-4-5 मरतबा ही हूं शुद्ध आत्मा छू बोला होगा और मुझे पता नहीं, नींद आ गई। इस तरह दिन कुछ कटते गए, चलते गए, और दादा के सत्संग में जाते जाते ज्ञान, घर में ही गंगा थी, केशव आनंद जी, राजेंद्र भैया यहाँ वहां से पकड़ के कुछ न कुछ ज्ञान की बातें शुरू कर देते थे। तो अभी पूरे घर को ले जाना था। तो राजेंद्र भैया, केशव आनंद जी, सब माता पिता को सबको ज्ञान दिलवा दिया। अभी घर में सारे ही लोगों ने ज्ञान ले रखा है। लेकिन बीच में एक टाइम ऐसा आया कि बहन ने मुझे नाइजीरिया बुला दिया और मैं नाइजीरिया जॉब करने चला गया। तो वहां पर सत्संग थोड़ा कम मिलने लग गया। तो
कुछ टाइम के बाद इतना अच्छा हुआ कि केशव आनंद जी को भी बहन ने बुला लिया, वो भी वहां पर आ गए। तो मुझे उनका सत्संग फिर मिलने लग गया और उनसे बड़ी बनती है मेरी। कोई ना कोई बातें वहां पर उस देश के अंदर काफी तकलीफें भी होती हैं और कुछ अजीब किस्म की भी बातें होती हैं जॉब में या शहर में या कहीं पर भी। लेकिन केशव आनंद जी बड़े सक्षम इंसान हैं, तो वो जब बातें समझाते हैं तो दादा को एग्जैक्टली लेके आते हैं और ऐसे लगता है जैसे दादा बैठे हैं हमारे साथ और दादा मेरे से बात कर रहे हैं और ये सॉल्यूशन कर रहे हैं। इस तरह मेरे सॉल्यूशन होते रहते थे। बस इस तरह नाइजीरिया का टाइम धीरे धीरे पूरा हो गया। पिताजी ने फिर कहा वापस आ जाओ, तो फिर बड़ौदा आ गए। बड़ौदा में फैक्ट्री डाल दी। फैक्ट्री डालने के बाद एक हादसा होता है किशन के साथ। मशीन में किशन का हाथ आ जाता है, तो वो वाक्य तुरंत याद आ गया। और ये 3 उंगलियां जो है उसकी सिर्फ हड्डियां दिखती थी, बाकी मांस पूरा लटक गया नीचे। तो विघ्नो अनेक प्रकारना होवाથી सेंटेंस आ गई। तेनी सामे अनंत शक्ति वाળો છું। कोई भी विघ्न है, अभी विघ्न ये था माल रवाना करना था, मशीन में हाथ आ गया, मशीन चलेगी नहीं, कौन चलाएगा। ऑपरेटर थोड़ा हिल गया था। तो मेरे कजिन को मैंने बोला कि यार एक काम करो, गाड़ी चला लो। बोले मेरे को गाड़ी चलाने नहीं आती है। तो मैंने वो पूरा मांस का लोचा उठा करके हाथ में रखा, हाथ में बांध दिया और मैंने कहा एक काम करो, 1 2 3 बोलूं तो गियर बदलना और गाड़ी को ले चलो डॉक्टर के पास, जो भी नियरेस्ट मिलता है। यू विल नॉट बिलीव, पूरी फैक्ट्री में फिर भी चक्कर मारने जाता है किशन। इतनी शक्ति एक लाइन में, हूं अनंत शक्ति वाળો છું। वो लाइन भी मुझे इतनी याद है अच्छी तरह से कि वो मन में ये लाइन जोर जोर से चल रही थी और मुझे यहां पर जो लगा है उसका असर ही नहीं हो रहा था। ऐसे करते करते कजिन को बोला कि यार देखो यार, मुझे चलना ही है और ये स्टिचेस करवाने पड़ेंगे, बड़ौदा तो नहीं जाएंगे, आसपास में कोई डॉक्टर होगा उससे ही करवा लेते हैं। तो मैं 1 बोलूं तो 1 में गियर में डालता था, 2 बोलूं तो 2nd गियर में। ऐसे करते करते हम दोनों गाड़ी मिलजुल के चला करके डॉक्टर के पास पहुंच गए। डॉक्टर के पास पहुंचते हैं बोलते यार ये यहाँ पर नहीं होगा मेरे यहाँ, आपको बड़ौदा जाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, जैसा भी आप ही यहाँ पूरा कर दो, बड़ौदा में किसी को पता नहीं और पता नहीं करना है, खामखा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो बोले यार एस्थेटिकली ठीक नहीं रहेगा, अच्छा नहीं होगा। तो मैं कहा आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कैसा भी होगा आई डोंट माइंड दैट। तो उन्होंने शुरू किया, बोले फिर भी आप साइन कर दो। तो मैंने कजिन को बोला साइन कर दो, जो भी बोलता है साइन कर दो। साइन कर दिया, उसने ऑपरेशन शुरू कर दिया और हाथ ऐसे हो गया, फर्स्ट क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा दादाजी कमाल है, आपकी एक लाइन किशन को शक्ति देती है। और मैं डरपोक भी था, गुंडागर्दी तो करता था, लेकिन जितने बड़े गुंडे होते हैं वो ज्यादा डरपोक होते हैं, पूरा दिन डरते रहते हैं। तो घर में आया, घर में बताया क्या है, बोले तू तो है ही ऐसा, तेरे को कोई पड़ी नहीं। मैंने कहा कोई पड़ी नहीं, डर मेरे को भी लग रहा था कि क्या होगा, सब ठीक हो गया है। और यू विल नॉट बिलीव, हॉस्पिटल से आने के बाद वो उनको सबको काम सौंपने के बाद घर गया है किशन। ये दादा की शक्ति देखो। नहीं तो पहले वाला तो कैसा होता किशन के उठ के चला जाता घर पर, तो वो घर पे जाकर के फिर नेक्स्ट डे उनको फोन पे ही बता देता है और माल रवाना हो जाता है। विघ्न दादा ने पूरा कर दिया, विघ्न हुआ और नेक्स्ट डे मटेरियल भी रवाना हो गया। तो ये एक दादा का ज्ञान, एक एक लाइन, एक एक वाक्य, एक एक बात इतनी गजब की मुझे टच करती गई कि मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को, सबको मैं लेके आऊं दादा के पास। और फिर भी मैं पूरी तरह से दादा को समझा तो नहीं था, लेकिन
इतना जरूर था कि दादा की जो सिंप्लिसिटी थी सॉरी, दादा की जो सिंप्लिसिटी थी, जो लॉजिक से बोलते थे, जो बात को जब लेते थे और जो वेल्डिंग से एक एक लाइन बोलते थे और जिस तरह से वो बात पूरी करते थे, कंक्लूड करते थे, मैं उनका सच्ची बताऊं, मैं उनका गुलाम हो गया था। ऐसा मतलब न मैं कहीं देखा था न सुना था। इट वॉज फैंटास्टिक। इसलिए मैं दादा के साथ और ज्यादा आने लग गया। मैंने कहा यार इतनी अच्छी बात तो कहीं नहीं मिलेगी, ये वाकई में अक्रम ही है। क्रमिक तो वो है जो समझ में नहीं आता है, लेकिन अक्रम समझ में आता है क्योंकि सब अलाउड है। तो इसी तरह जीवन आगे बढ़ता गया, सारे घर ने ज्ञान ले ली। एक वाक्य में बताना जरूर चाहूंगा, थोड़ा वक्त तो हो गया है लेकिन डोंट वरी प्लीज। तो 2 वाक्य बोल दूं? बोलिए बोलिए, यू हैव टाइम, नो एक वाक्य ऐसा था प्रॉब्लम। कि मेरा कोई लफड़ा चल रहा था और मुझे डर लग रहा था दादा भगवान का। मुझे ऐसे लगा कि शायद मुझे देश निकाली मिलेगी या सत्संग में आना बंद कर देंगे दादा मेरा। लेकिन देखो दादा की महानता देखो, दादा की सहजता देखो, दादा का सहज क्षमा देखो। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम कन्या भाई ने मुझे बोला था कि विनय से कुछ लिख डालो तो ही दादा आपके लिए कोई विधि करेंगे। तो मैंने कहा कन्या भाई मेरे को तो ज्ञानी पुरुष को कैसे एड्रेस करूं आई डोंट नो, आप मेरे को बताओ कैसे एड्रेस करूं। तो उन्होंने मुझे काफी मदद की। उस तरह मैंने दादा को खत दिया। कैन यू बिलीव, दादा बोलते हैं ये सब जो तुम कर रहे हो या करते हो या रोकने का है या बंद करने का है, ये तब होगा जब तुम प्रॉमिस करोगे। और इतना प्यार से बोलते थे, मैं आपको क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इतना प्यार से बोलते थे कि देखो आओ फरी तो नहीं करे ने, दोबारा तो नहीं करोगे ना ऐसे। मैंने कहा नहीं दादा। चलो पक्का? हाँ दादा पक्का। प्रॉमिस? जी दादा प्रॉमिस। नाउ कैन यू इमेजिन, इतने 3 वर्ड के अंदर मैं ऑलरेडी ऐसे लग रहा था कि मैं लाइफ टाइम किसी लड़की को नहीं देखूंगा। इतना प्यार से देखो, उनकी प्योरिटी देखो, इतना गजब की प्योरिटी कि उनकी आंखों में आंखें डालूं मैं तो ऐसे लग रहा था जैसे मेरे अंदर कोई भगवान बैठा है, लेकिन मैं तो एक बहुत बड़ा गुंडा था। मेरे अंदर भगवान देख रहे थे, वो मैं समझ गया था। और क्योंकि ऐसी आंखें, इतना ग्लेयर, मैं फेबरघास्ट हो गई। मैंने कहा ये पता नहीं कुछ तो हो रहा है। तो दादा ने बोला कि अभी विधि करता हूं, बाद में फिर ये बताऊंगा क्या करो। तो दादा ने विधि की। बाद में पता है क्या बोले, अभी जब भी वो लड़की तुम्हारे बाइक पे बैठे शुद्धात्मा शुरू कर देने और प्रतिक्रमण शुरू कर देने का। दूसरी बात बताए क्या बोली, कभी भी बोलना नहीं ये क्यों पहना है वो क्यों पहना है। कभी भी पूछना मत कहां से आती हो कहां जाती हो। कभी भी कहना मत कि चलो मेरे घर आओ, मैं तुम्हारे घर आता हूं, पिक्चर चलते हैं। शुद्धात्मा और प्रतिक्रमण करते रहो। मैं दादा हर एक चीज हाँ बोलते गया, हाँ बोलते गया। और यू विल बिलीव, नेक्स्ट डे से हुआ भी ऐसे। सिर्फ बातें होती थी, लेकिन क्या पहना है, क्यों पहना है, मेरी मम्मी देखेगी तो क्या बोलेगी ये क्या पहन के आई हो, वगैरह कुछ भी नहीं। 9th डे पे उसकी एंगेजमेंट हो जाती है। 9 दिन। 10th डे पे दादा को बोल रहा, दादा
सब काम पूरा हो गया, आपने क्या जादू किया? बोले हैं ऐसे दादा कुछ जानते ही नहीं थे और जानते हुए भी ये बोले हैं। ये दादा का ना मैं कभी भूल नहीं सकता, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो आनंद, जो खुशी। करेक्ट। एक ये वाकया इसमें से मुझे बाहर निकाला। अब घर वालों का फोर्स था, भाई कुछ टाइम हो गया तो बोले अभी शादी कर ले तुम। और मैंने दादा को बोला दादा ऐसा ऐसा हो गया है, ऐसा ऐसा किया है, मेरे को तो अभी कुछ। बोले नहीं, अंदर कुछ है ना अभी भी। मैं कहा दादा दोनों बात है, होता भी है नहीं भी होता है। बोले नहीं, मम्मी पापा को पूछो क्या करना है। तो लड़की ढूंढी गई, डिसाइड हो गया। मैं नाइजीरिया से फिर शादी करने के लिए फिर इंडिया आया, बड़ौदा आया। और दादा भगवान को बुलाने के लिए कन्या भाई ने इनविटेशन दे करके समझा करके बोला था कि दादा आप 3 दिन आना। तो 2 या 3 दिन का प्रोग्राम था। तीनों दिन दादा किशन के मैरिज में आए। किशन का एक सेट ऑफ स्टेज अलग था और उसी स्टेज पे दादा का और एक स्टेज बनाया, ताकि पूरी दुनिया जितने भी लोग, करीब 900,000 लोग आए थे। हमने कहा कि सभी दादा का दर्शन करें। ऐसे भगवान का तो दर्शन बार बार करना चाहिए। तो हमारे परिवार वाले, लड़की के परिवार वाले, हमारे कजिन्स कहाँ से आए थे, दोस्त यार, सभी लोगों ने वो दादा का वहां दर्शन किया। हमको भी खूब आनंद हुआ। और आप बिलीव करोगे, हम अलग स्टेज पे बैठे थे तो दादा चल उठे, चल के मेरे पास आने लगे। तो नीरूबेन थी, राजेंद्र भैया थे, केशव आनंद जी थे, सब थे। कुछ आप्तपुत्र भी थे, कुछ बड़े बड़े महात्मा भी थे, नटू काका जी वगैरह सब। तो मैंने कहा देखा भगवान हमारे तरफ आ रहे हैं, हमको चलना चाहिए। तो हम चल पड़े। तो हम दादा की तरफ चले, दादा हमारी तरफ चले। तो मेरी एक बुरी आदत हो चुकी थी दादा को गले लगाने की। तो एक बार दादा नटू काका जी ने बोला था भाई भगवान को गले नहीं लगाया जाता है। मैं डर गया, लेकिन आदत से मजबूर फिर भी गले लगा दिया स्टेज पे, ऐसे दोनों हाथों से दादा को पकड़कर। वो गुलाब की खुशबू, आज तक वो गुलाब की खुशबू जा नहीं रही है। वो देशी गुलाब, वो ऐसे गजब के देशी गुलाब की खुशबू आज तक नहीं जा रही है। कोई भी अच्छी बात होती है, कोई भी थोड़ी भी अच्छी बात होती है, वो खुशबू आज भी आ जाती है। ऐसे लग रहा है कि दादा यहीं कहीं बैठे हैं। तो दादा को मैंने कहा दादा मुझे माफ करो, मुझे पता नहीं, शादी भगवान के आगे शादी कर रहा हूं, जो मोक्ष जाना चाहिए मैं शादी कर रहा हूं, मुझे पता नहीं करना चाहिए या न करना चाहिए। बोले नहीं नहीं बराबर से ऐसे बोले। बोले कि नहीं नहीं ये सब भाई सब बराबर है, अच्छे हैं। तो मैंने कहा दादा अच्छे या नहीं, मैं तो बहुत बंडल आदमी था, बेकार आदमी था। आपने जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत नहीं, आपने पूरा इसको काया ही पलट कर दिए। तो उस दिन भी दादा ने काफी आशीर्वाद दी हम दोनों को। और उसके बाद एक और वाक्य मुझे याद आता है, जो कौन सा था, खैर अभी मिस हो रहा है शायद। हाँ, अभी एडजस्ट एवरीवेयर की जो आज बात है, बीच बीच में कई बातें हैं, मैं थोड़ा शॉर्ट में किए जा रहा हूँ, माफ करना। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं बहुत लंबा ना हो जाए। किजन भाई, you take your time. We will call you again if needed. Please, it is going on very well. तो ये जब शादी हुई तो मैं आपको
कैसे एक्सप्लेन करूं, वाइफ के साथ मेरा नाइजीरिया में थोड़े ही टाइम के बाद, थोड़ा टाइम बहुत अच्छा चला, लेकिन थोड़े टाइम के बाद कोई न कोई फाइल के साथ चालू हो गया, कुछ ऐसा कुछ नहीं, कोई अच्छा लगना, कोई बात बुरी लगना, कोई कुछ भी हम करें तो मतलब हम ही बंडल आदमी थे, आई कुड फील, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि दादा के ज्ञान में मुझे पक्का होना पड़ेगा, इसलिए ये गुरु मिला है मुझे। तो गुरु तो अच्छा मिल गया। आज जो किशन ठीक हुआ है थोड़ा बहुत, नहीं तो ये लैंग्वेज भी किशन की नहीं थी, कोई अलग ही किस्म की लैंग्वेज थी। एक सेंटेंस में 10 तो गालियां आएगी, वो सब दादाजी ने कि उनके सब कुछ बंद हो गया। और वाइफ के साथ आई एम वेरी सॉरी, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैंने उनको मारा भी है, जो मुझे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज भी मैं कई बार रो पड़ता हूं, मुझे ऐसे लगता है कि मैंने ये क्या किया है। भले वो चाहे मर्जी वो कुछ भी करे, लेकिन वो औरत कमजोर है इसलिए उसको मारना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा हाथ उठा नहीं पाएगी, ये गलत बात है। तो दादा ने बोला विधि कर लो, आज के बाद सौगंध खा लो कि शरीर कट जाएगा लेकिन हाथ नहीं उठेगा। तो गालियां तो काफी मतलब 90% डाउन हो गई और मारना भी बंद हो गया। लेकिन अभी क्या चल रहा है, भाई आप यहां क्यों बैठे हो, तो मेरे को कहना पड़ता है डार्लिंग आप बोलो वहां बैठ जाऊं। तो अब वो खुश होती है, बोले अपने बेडरूम में जाओ वहां बैठो, मुझे यहाँ टीवी देखनी है। हाँ जी, तो हम टीवी चले जाएंगे। खाने में बोलेगी कि भाई क्या खाओगे, मैंने कहा जो बनाओगे। बोले ऐसे नहीं, बताओ क्या खाओगे, तो मैंने कहा जो बनाना है सब खाता हूं। इस तरह एडजस्टमेंट शुरू हो गई, और ऐसी एडजस्टमेंट शुरू हो गई, मतलब ऐसा नहीं है, कई बातें आज भी है जो मैं डिसएडजस्ट हो जाता हूं, लेकिन सोडे की तरह हो गया अभी। पहले नहीं था, पहले उसका तंत्र रहता था, 2-2 3-3 दिन तक मैं बात भी नहीं करता था, लेकिन अभी 2-3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, छठे मिनट के बाद मेरे को उसका दोष नहीं दिखता है। मैं सॉरी बोल करके बात को आगे बढ़ाता हूं कि आई एम सॉरी, आगे बोलो क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए वैसा करो। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है दादा के ज्ञान के बाद कि भाई घर में सुख चैन और शांति ये बहुत पैरामाउंट इंपॉर्टेंस का है। चाहे कुछ भी हो जाए, समझो बेवक्त मेरे दोस्त आ जाए तो भी उसको जो बोलना है बोल लेना चाहिए, उसमें मेरे को ऐसा उसको रोकना भी नहीं चाहिए, उसका हक बनता है जो भी बोले, क्योंकि अगर मैं रॉन्ग हूं तो रॉन्ग हूं, इसमें डरने का क्या है। तो वो मेरा डर निकल गया, अभी वो जैसे बोलती है वैसे करने को मेरा मन करता है। ऐसा मन मतलब ऐसा होता है कि चलो इस बहाने उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, तो ये एक संभव निकाल हो जाए और बात आगे न बढ़े। और दादा की तरह सहज क्षमा तो कर नहीं पाते हैं ऑल द टाइम, जो दादा की सहज क्षमा थी, लेकिन हाँ ये है थोड़ी देर के बाद गुस्सा ढल जाता है और फिर वो ही प्यार से बात करता हूं तो उसको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है, वो भी भूल जाती है, वो भी बहुत ट्राई करती है, वो उन्होंने भी ज्ञान लिया है दादा का, तो उनको भी बड़ा अभी ऐसे लगता है कि दादा ने ये बोला था तुम ये तो करते नहीं हो। अभी ऐसे गुंडे आदमी के साथ कोई बात नहीं कर सकता हो, अगर बात करे तो 2-4 तो लग जावे। तो आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे ये सब बातें
नहीं, it is you are telling with total modesty, please let it go. कैसे बोलना चाहिए आई डोंट नो, लेकिन आई एम सो सॉरी फॉर माय वाइफ एंड शी इज सो लवली अ लेडी, गोल्ड मेडलिस्ट है, बहुत पढ़ी लिखी है, नेचुरली उसको मेरा मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मैं भी 3-4 डिग्री किए हुए हैं, लेकिन इनका जो संयम है वो बहुत अच्छा है। इसलिए मेरे को आजकल उनकी बातें ऐसा लगता है कि नहीं, whatever she is telling me, she is telling for good, मेरे लिए अच्छा है। समाज में मेरे को ऐसा चलना चाहिए, वो ऐसा बोलती है तो सही है। तो मैं यहाँ पर इस बात को पूरा करूंगा कि एडजस्ट करते करते आज हम दोनों मिल गए, वो बहुत बड़ी बात हो गई, वो इतनी अच्छी बात हो गई कि हम दोनों आज मिल गए हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से चल पाते हैं, वो दादा की कृपा से हो पाया, वरना ये कलयुग में नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। न मैं उसकी बात समझूंगा न वो मेरी बात समझेगी। ये कलयुग भी, वो जमाना 72 की बात करता हूं, फिर भी थोड़ा बहुत मुझे लगता है हम कुछ अच्छे थे शायद, तो भी दादा बोलते थे घोर कलयुग थे, लेकिन 86 में बोलने लग गए घोर 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 कलयुग है। वो 3 बार बोलने लग गए, मैं समझ गया और बढ़ गया है। तो ये है, ये ऐसे घोर कलयुग के अंदर दादा के ज्ञान से ही, दादा के ज्ञान के वाक्यों से, दादा के ज्ञान की बातों से हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से चल पाएंगे, ज्ञान में चल पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, और ज्ञान में जितना आगे जाएंगे मोक्ष के नजदीक जाएंगे। अभी टारगेट यही एक ही है, मोक्ष जाना है, और कहीं नहीं जाना है, मोक्ष जाना है, महाविद्य क्षेत्र जाना है, सिमेंद्र स्वामी के यहाँ जाना है। तो मुझे भी याद दिलाती है, आप तो बोलते हो सिमेंद्र स्वामी के यहाँ जाना है, फिर ऐसे काम करते हो, आपको क्या अभी सुपर ह्यूमन बीइंग बनना है? तो मैंने कहा सुपर ह्यूमन बीइंग बनेंगे तो हेवन में जाना पड़ेगा ना, तो हेवन में भी नहीं जाना है, मुझे अभी मोक्ष जाना है। आप भी आशीर्वाद करो कि हम मोक्ष जाएं। और मैं सारे महात्माओं को, रजनीकांत भाई साहब, प्रदीप आनंद जी, दीपक आनंद जी, सब संकेतदारी महात्मा, केशव आनंद जी, मुझे क्षमा करो और मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं मोक्ष तरफ चलूं और मोक्ष की तरफ ही जाऊं और मोक्ष ही जाऊं। जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। प्रदीप आनंद जी, जय सच्चिदानंद। Thank you for listening to me and I'm sorry for whatever mistakes I might have done। और हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन I'm sorry। प्रदीप आनंद जी। हाँ जी, बताएं आप। बस એમને તમારે નમસ્કાર કરવાના, દાદાની આજ્ઞા પાડીને હાર પહેરીને ગયા ને, અને દાદાને આગળ બધું હૃદય ખોલી નાખ્યું એટલે એમનું કામ થઈ ગયું હવે બસ। જ્ઞાની પુરુષને સિન્સિયર રહેવું ને, हिंदी हिंदी बोलिए। એની કિંમત તો એ પોતે ભગવાન જ જાણે, આપણને ના ખબર પડે। हिंदी में बिल्कुल 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 सही है। दादा को सिंसियर रहना, एक भी वर्ड्स पे सिंसियर रहना, उनकी कीमत तो दादा भगवान को ही पता है जी बिल्कुल। वो मेरा जैसा आदमी कुछ नहीं कीमत कर पाएगा। वो तो सिर्फ मैं नमस्कार ही करता हूँ कि धन्य है आपको कि आपने दादा के वचन को सिंसियर रहे, मेरा नमस्कार है आपको। और आपको दादा के प्रति इतनी भक्ति और सिंसियरिटी और जो श्रद्धा आपको है, वो उनका फल मोक्ष ही आने वाला है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका मार्ग क्लियर ही है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किशन भाई, आपके लिए तो कुछ भी बोलना कम ही रहेगा। पहली तो बात यह है कि जब आपको ज्ञान मिला है ना जी, जब यानी 73-74 जी, that is the time you fall in that 2103. So salute. जय सच्चिदानंद। You have been very fortunate, I will say. आप बहुत 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 भाग्यशाली। आई बिलीव सारा सहानी परिवार
इसमें आ जाता है। यू हैव बीन वेरी लकी। थैंक यू। 2103 में आना, जो दादा ने कहा कि 2103 की टिकट मेरे पास है, हम तो सब एक्स्ट्रा में गए, सुपर एक्स्ट्रा में, कोई ठिकाना नहीं। I'm just telling you, I'll be very frank and open with you, really। और जैसे आपने कहा, बहुत डेप्थ में, आप तो बहुत डेप्थ में है, हमारा तो उसमें कोई काम नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, आपको सुन के तो हम थोड़े बहुत ठीक हो रहे हैं। अगर आप नहीं होते सब आप तो पुत्र, तो हम कहाँ जाते। ऐसा है ना, आपके यहाँ हम बोले ना, पाले पुसे बड़े हुए सब आप तो पुत्र। ये बात मैं बताना भूल गया कि हमारे घर में क्योंकि केशव आनंद जी थे, तो काफी राजेंद्र भाई, कन्या भाई, तो काफी संकितधारी महात्मा, काफी आप तो पुत्रों का आना जाना रहता था। तो मुझे उस जमाने में 72, 73, 74 महेश आनंद जी मेरे कॉलेज में जय सच्चिदानंद करने वाले एक दोस्त थे। तो मैंने कहा ये मेरा दोस्त मुझे जय सच्चिदानंद क्यों करता है, मैं तो अभी तक ज्ञान भी नहीं लिया है। तो मुझे पता चला कि ज्ञान लो या ना लो, जय सच्चिदानंद करने में क्या है। तो जब मैंने ज्ञान लिया तो मैंने कहा हाँ नहीं, जय सच्चिदानंद तो करना ही है। बात समझ में आती है और पूरी डीप में समझ में आई। तो मैंने कहा ये एक शख्स ऐसा है जो मुझे और भी दादा की तरफ ले जा रहा है। और ये जब भी होता है कॉलेज में मुझे जय सच्चिदानंद करते हैं तो मुझे बहुत आनंद होता था। मैं कहा यार ये मेरा घर ही है, जैसे कॉमर्स फैकल्टी नहीं है, एक बार खाली जय सच्चिदानंद ये लड़का करता है। हम 18, 19, 20 साल के 19 साल के लड़के ऐसे घूमते फिरते। सही है। तो वो मनीष आनंद जी का भी मैं सब घर आपका पुत्र आते जाते थे, तो सबका स्वभाव देख करके इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना प्यारा स्वभाव। मेरे को लगता था ये कॉलेज में ये लोग जाते भी है या क्या है, या दादा ने इनको बांध के रखा है या क्या किया है। कुछ तो भी बहुत बढ़िया, मतलब स्वभाव देखो तो ऐसा लग रहा था कि सब सीधे है। बात सही है। एक बात तो बहुत बड़ी यह है कि ये तो दादा भगवान ही है जो जिस तरह से आपने अपना वर्णन किया है कि वो दादा ही आपको संभाल सकते हैं। और दूसरे जो सही मायने में अगर कहूँगा तो आपके धर्मपत्नी जो है उन्होंने आपको संभाला है बहुत। बिल्कुल जो आपने बड़े उदारता से कहा कि उन्होंने मुझे सीधा किया है करके, बहुत सीधा किया है। और दादा ने और फाइल नंबर 2 ने, इन दोनों का मैं ऋणी हूं। मैं राजेंद्र भैया, कन्या भाई जो मुझे स्कूटर पर पकड़ पकड़ के मेरे को ज्ञान दिलवाते थे, और एक बार नहीं कई बार दिलवाया। बोलते फिर से बैठ, तू कच्चा है तो फिर से बैठ, तेरी बुद्धि जड़ है, गुंडों जैसी है, अभी भी तू नहीं सुधरता है, फिर से बैठ। वो कन्या भाई मुझे बार बार सत्संग में ले जाते। केशव आनंद जी बहुत मतलब गंभीर समझदारी से मुझे समझाते थे, लेकिन कन्या भाई और राजेंद्र भाई पकड़ पकड़ के ले जाते थे। ये एक बहुत बड़ी बात होती थी घर में। बात सही है, लेकिन मैंने कहा ना ये 2103 वाले का कुछ हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो इसको ऐसा हम बोलेंगे जो बाहर बोला जाता है। You are like the 2103 are the most chosen one, क्योंकि दादाजी भी ज्ञान जब देते थे तो बहुत छानबीन करके देते थे, बहुत जांच करके देते थे, वरना नहीं देते थे। जी जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी एक अच्छी बात बताई कि जो बड़े गुंडे होते हैं ना वो बड़े डरपोक होते हैं। बहुत डरपोक। ये आपको मैं सच्ची बताऊं, हम डरपोक भी बहुत थे भाई, कहाँ से कौन छुरा मार देगा पता नहीं। बात तो वैसी ही है, उनको ये तो प्रॉब्लम। और आप FR थे, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव ना। हाँ, फिर तो क्या होगा, सब आपके दुश्मन। लड़कियां नहीं थी। नहीं तो है, वो तो दूरी रहेगी ना आप जैसे। हाँ, ये बात है। और वो जो सब प्रसंग ये बताया जो दादा ने आपको उसमें से निकाला, सैल्यूट। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फैंटास्टिक।
वरना वो पॉसिबल नहीं है। और जो एक्सीडेंट की बात बताई आपने वो भी टू गुड, ये दादा कैसे काम करते हैं। और मैं तो ये बताऊंगा कि दादा भगवान ने तो अपना काम किया, लेकिन कुछ आगे का अच्छी कनेक्टिविटी है कि जिसके आधार पर आप समर्पित हुए, टोटल सरेंडर। और ये सरेंडर क्या होता है, ये जो आपने बताया ना, वो उसका प्रमाण है, उसका प्रमाण है कि that's how you are totally devoted to Dada Bhagwan, his science, his principle, and you are coming out, you have come out so very nicely. जी। और आपकी उदारता भी बहुत अच्छी है, मॉडेस्टी, वरना कोई ऐसे अपनी बात कहेंगे नहीं। मैं शुद्धात्मा हूँ और प्रतिगमन, बस ये करना। जी जी क्या जी बात है। जी बहुत जी अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत कुछ है आपका अनुभव जरूर से। इट इज अ ग्रेट ट्रेजर फॉर अस एंड आई विल रियली थैंक यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो क्या, आप थैंक भी बहुत छोटा शब्द है। केशव आनंद जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि मैंने उनको अभी 2 दिन पहले ही कहा कि कुछ करो, तो उन्होंने कहा कि मैं ढूंढ निकालता हूँ। उनका फोन आया, अभी कंफर्म किया। वेरी गुड, नो वर्ड्स टू से। थैंक यू जय सच्चिदानंद। थैंक यू। हमको बोलना है, आपको नहीं बोलना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं को जय। किशन भैया बहुत बहुत बढ़िया आपका एक्सपीरियंस सुन के, देयर इज नो वर्ड टू डिस्क्राइब क्या ऑनेस्टली you talked about your life, how you implement the Gyan, how you get your life into really straight path towards the moksha. Very, very wonderful, wonderful. So this is also a good eye opener for many, many Mahatmas. In loco, that inspiring also. So there's a lot of comments. Wonderful, wonderful, extremely good, superb, salute, wonderful experience. Yes, even I got superb salute. नहीं, I salute. So no, वो wonderful। और आप दूसरा कुछ सेकंड फेज में भी आना, तो इट वेरी गुड। अभी आप प्रदीप आनंद जी त्रिमंत्र बुलाएगा और आप प्लीज फॉलो करिए। किन्ना ये भाई उधर आप कृष्ण भाई है, केशव जी है। ओह वेरी केशव गुड। आनंद जी है ना, जय उनके घर पर तो केशव आए जी। हैं। जय सचिन, जय सचिन। प्रदीप आनंद जी। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवस्यायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्व साहुणं, नमो लोहे सव साहुणं, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, तव पावपणासनो, तव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सवेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।